14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਜਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ +2 ਤੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਕਰਤਾ। ਚੈਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ, ਮੈਰਾਥਨਸ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ। 14 ਈਅਰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਵੇਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, YouTube ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਿਆ? इन्वेस्टिंग कैन नॉट बी टॉट, इट कैन ऑल बी लर्नड। तो इन्वेस्टिंग इसलिए कहते हैं इट्स अबाउट मतलब ग्रोइंग योर वेल्थ, नॉट क्रिएटिंग वेल्थ। तो आपको इनकम ला के इधर डालनी पड़ेगी और वेल्थ बनानी पड़ेगी। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਏਜ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਹਰ ਟਰੇਡਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖਾਲੀ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट योर सेल्फ। आप और आपका दिमाग है, और तो कुछ है ही नहीं इस गेम में। तो ना कोई ऑफिस चाहिए, ना कोई टीम चाहिए, ना कोई बंदे, ना कुछ नहीं चाहिए आपको। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ? ये जो 3 साल मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, प्लान सिंपल था। इन 3 सालों में मेरे को बहुत आगे निकलना है। क्या मैं निकल सकता हूँ? मेरे अंदर से जवाब आ रहा था यस, एंड दैट वाज द सिंपलेस्ट रीज़न ऑफ नॉट गोइंग टू कॉलेज। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸੀਆਰਸ 'ਚ, ਕਰੋੜਸ 'ਚ ਜਾਂ ਲੈਕਸ 'ਚ? तो आई एम मैनेजिंग इन CR, आई एम मैनेजिंग अ कपल ऑफ करोड़। ਯਾਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਓਵਰਵੇਟ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਡਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਈ ਆ ਫਿਟ ਇਨ 100 ਡੇਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਰਕਆਊਟ ਪਲਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਕਿੰਗਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਟ ਸਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਪੈਕ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਐਪ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਵਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਯੂ 14 ਈਅਰਸ 올ਡ, 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਜਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ +2 ਤੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਕਰਤਾ। ਚੈਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ, ਮੈਰਾਥਨਸ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ? ਵੀਰ ਜੀ ਬਸ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੈ ਚਲਦੇ ਚਲੋ, ਤੇ ਚਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਪਰ ਯੈਸ 14 ਦੀ ਉਮਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਥੋੜੀ ਯੰਗ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਗੋਟ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਯੈਸ ਦੈਨ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। सो आई डो नॉट बिलीव इन फॉर्मल एजुकेशन। सेल्फ लर्निंग की है मेनली, खुद ही सीखिए, खुद ही सीख रहे हैं, स्टिल इन दैट जर्नी। बट येस आई डोंट गो टू अ कॉलेज। आई एम अ फुल टाइम इन्वेस्टर। चेस भी खेली है, काफ़ी सालों तो खेल रहे हैं, हम बच्चे ने पढ़ाना। आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेलर एंड आई एम नाउ अ हाफ मैराथन रनर। नाउ आई डिडंट रन अर्लीयर, मैं 1 साल तो रनिंग शुरुआत की है, पर गुरु महाराज की कृपा नाल 21 किलोमीटर दौड़े हैं, तो नाउ आई एम अ हाफ मैराथन रनर। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਲਾਈਕ 14 ਈਅਰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ? ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਲਸੋ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਦ ਵਨ ਹੂ ਸਟਾਰਟਡ ਬਾਈ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਮਨੀ, ਹਿਊਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ, ਐਂਡ ਨੰਬਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर दैट ਵਾਜ਼, ਇਫ ਆਈ ਵੁਡ ਟੈਲ ਯੂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਆਈ ਕੈਨ ਪ੍ਰੂਵ ਅਦਰਸ ਰੋਂਗ, ਔਰ ਆਈ ਕੈਨ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ ਫॉर ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੀਕ ਚਾਈਲਡ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਦ ਬੋਰਿੰਗ ਵਨ, ਨਾਟ ਸੋ ਕੂਲ ਵਨ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ that is how it basically started. There was a mission, but of course ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਸ ਆਫ ਫੈਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੂਵ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰਸ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਲੱਕੀਲੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਰੱਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ,
My father is a garment exporter. He has nothing to do with the stock markets. But just like, a side business, or not even a side business, just passing time here and there, बहुत लोगों ने शुरुआत करी ट्रेडिंग करनी, क्योंकि और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी उस टाइम. माय डैड वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू द न्यूज़ रैंडमली, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕਰਾਂਗਾ. ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਐਨੀ 14 ਈਅਰ ਓਲਡ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਮਾਈ ਡੈਡ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਕਾਈਂਡ ਇਨਫ ਟੂ ਗਿਵ ਮੀ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈ 5000 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ. I traded with using my mother's account, and that's how it started. ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ. ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ शेयर ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ अलग-अलग कंपनियाँ ने, बट आई डिडंट नो शेयर का प्राइस क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, क्या बेसिस है, कुछ नहीं. बट आई स्टार्टेड विद those 2-3,000 रुपीस, and yes, that's how it's. ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 5000 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 5000 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ. ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਣ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝਣ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਵੇਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਵੀ ਬਾਏ ਅਤੇ ਸੈਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਕ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦੇ ਆ? ऑफ कोर्स यूट्यूब वीडियोस तो बहुत सीखिया. यूट्यूब वीडियोस देखते रहंदे सी पूरा टाइम. लोग तो गल करते रहंदे सी, इत्थे उत्थे देखते रहंदे, बुक पढ़ी रहंदी, ते सब कुछ कीता. बट अगेन मैं प्रैक्टिकली ही सीखिया है. ट्रेडिंग कर करके सीखिया है, गलतियां कर करके सीखिया है. इट इज़ नॉट लाइक मैं जैसे दसिया मेरे कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, कि वैसे भी इन्वेस्टिंग की फॉर्मल एजुकेशन आई डोंट बिलीव होती है. कहते हैं ना, इन्वेस्टिंग कैन नॉट बी टॉट, इट कैन ऑल बी लर्नड. मतलब इन्वेस्टिंग सिखाई नहीं जा सकती, सीखी जा सकती है. तो बाजार से आप खुद सीखते हो. सो खुद ही करा है. पर हाँ, यूट्यूब से बेसिक देख के बाय साइड सीखा था. आई रिमेंबर माय फर्स्ट बाय वाज एचडीएफसी बैंक, क्योंकि कॉमन नाम वही पता होते थे उस टाइम. तो मैंने 2 शेयर लिए थे, जितना मुझे याद है. तो वो 2,500-3,000 रुपए के मोटा-मोटे बनते थे उस टाइम, और दैट इज़ अबाउट इट. फिर मैं रैंडमली शेयर्स खरीदता बेचता रहता था. बट द आइडिया वाज ऑलवेज फिगरिंग आउट, ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ कैन आई मेक मनी. मैं किस तरह पैसा बना सकता ज़्यादा, क्योंकि खुदली मैं कुछ कर पाऊँगा, मैं फ्री हो पाऊँगा, एंड आई विल बी एबल टू स्टैंड आउट अमंगस्ट अदर्स. दैट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव, यही दिमाग में सीखा. पर फिर उस तो बाद ऑफ कोर्स सीखते गए. यूट्यूब तो सीखिया, इधर-उधर लोगों को पूछ के सीखिया, पापा को थोड़ा बहुत सीखिया. बट या जर्नी रही है पूरी. ਜਿਵੇਂ ਜਦ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. 10,000 ਪਾਏ, ਬਲੌਕ ਕਰਤੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵ ਕੀਤਾ, 1-2 ਮਹੀਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਏ 10,000. ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਰ ਟਰੇਡਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖਾਲੀ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? नहीं, मेरा अकाउंट ब्लो नहीं हुए. रीज़न है क्योंकि मैं कभी भी फ्यूचर ऑप्शंस नहीं कीता, एफ एंड ओ ट्रेडिंग नहीं की. मैं हमेशा कैश विच ट्रेडिंग की, डिलीवरी विच. कोई शेयर खरीद लेता, टाटा मोटर्स खरीद लिया, एचडीएफसी बैंक खरीद लिया. टाटा मोटर्स कैन नॉट गो टू जीरो, एचडीएफसी बैंक कैन नॉट गो टू जीरो, है ना. वो 10-20% घट जाएगा, बच जाएगा, पर एट दी एंड ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ. ਬਲੂ ਚਿਪ ਸਟਾਕਸ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਈਵਨ ਨਾਓ ਆਈ ਡੋਂਟ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਐਫ ਐਨ ਓ. ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਦੈਟ. ਤੇ ਬਾਈ ਗॉड्स ਗ੍ਰੇਸ ਮੈਂ ਲੱਕੀਲੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਐਫ ਐਨ ਓ ਸਾਈਡ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਉਹ ਬਲੋਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਕਾਊਂਟ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ. ਟਾਈਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ. ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 2-2.5 ਸਾਲ I used to make money, but then I used to lose it all. So I used to make my biggest profit, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. बिकॉज़ यही ਹੁੰਦਾ है, इट इज़ बाज़ार जो है आपका लालच और भय का वो ना एक जगह है, एक फ़ियर एंड ग्रीड, दैट इज़ व्हाट इट इज़. तो वो आपको तंग करता रहेगा बार-बार जब तक आप सीखोगे नहीं, और आज तक तंग होते हैं हम, क्योंकि हर रोज़ ही गलतियाँ करते हैं. पर हाँ, अकाउंट ब्लो नहीं हुए लकीली, पर यस नुकसान तो बहुत हुए. ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰੰਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਲਾਈਕ ਜਦ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਕੁਇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ. ਲਾਈਕ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10,000 ਰੁਪੀਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਬਾਇੰਗ ਸੈਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਬਾਇੰਗ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਸ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਵਰੇਜ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਲੈਵਰੇਜ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ. ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਲੈਵਰੇਜ. ਹੁਣ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੈਵਰੇਜ 5x 5 ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹੁਣ. ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 10x ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਸੋ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਲੈਵਰੇਜ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਅਮਾਊਂਟਸ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਤੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਇਟ. ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਬਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਕਾਊਂਟ ਕਦੇ ਲੱਕੀਲੀ. ਪਰ ਹਾਂ, ਲੈਵਰੇਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਵੀ ਜਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਐਫ ਐਂਡ ਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਜਲਾਇਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਲਾਇਆ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 2.5 ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ. ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਰਾਈ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਵਾਈ ਐਮ ਆਈ ਹੇਅਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਿੰਗ. ਗੁੱਸਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਰੋਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ, ਰੋਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ.
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਡਾਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਥ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਸਟਫ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट योरसेल्फ। आप और आपका दिमाग है, और तो कुछ है ही नहीं इस गेम में। तो ना कोई ऑफिस चाहिए, ना कोई टीम चाहिए, ना कोई बंदे, ना कुछ नहीं चाहिए आपको। बट आप और आपका दिमाग है, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो कमाओगे पैसे। तो वो हुआ था, बट स्टिल अब ब्लो तो नहीं हुआ अकाउंट। ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 19 ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ 19 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ 50-100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ 45,000-50,000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਮਾਊਂਟ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟਸ, ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਲੇਟਰ ਔਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਵਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੇਕ ਮਨੀ ਥਰੂ ਅਦਰ ਵੇਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਬਟ ਬਹੁਤ 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 ਛੋਟਾ। ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ 2-2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ 40-50 ਦਾ ਕਮਾਏ ਸੀ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਅਮਾਊਂਟ ਫॉर ਮੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਗਈ ਸਲੋਲੀ। ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ? +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ कॉलेज। आई वाज़ ऑल सेट कि मेरे को नहीं जाना है कॉलेज। रीज़न बीइंग, मुझे ऐसे कॉलेज से कोई हेट नहीं है। जो लोग जाते हैं प्लीज़ गो टू अ कॉलेज, आई डोंट सजेस्ट एनीवन टू नॉट गो टू अ कॉलेज। बट लॉजिक सिर्फ इतना होता है कि यू कैन नॉट सिंपली रिलाई ऑन फॉर्मल एजुकेशन। क्या होता है कि हम बीबीए कर लेते हैं, बीकॉम कर लेते हैं, जो भी बेसिक डिग्रीज कर लेते हैं, फिर एक्सपेक्ट करते हैं हमारी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हो जाए। आई डोंट बिलीव ऐसा हो सकता है। बिकॉज जब 500 बच्चे एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं एक ही चीज़ को, कभी भी 500 के 500 एक बार में अमीर नहीं हो सकते। दैट इज़ द सिंपलेस्ट लॉजिक ऑफ लाइफ। हर बच्चा या हर इंसान एक बार में अमीर नहीं हो सकता है, या एक ही बार में बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। कुछ ना कुछ बड़े आदमी में हमेशा अलग होगा, तभी वो बड़ा आदमी बना है। और वो अलग कैसे हुआ? क्योंकि वो खुद सीखा, खुद से सीखा। तो जैसे मैंने पहले बोला, दीज थिंग्स कैन नॉट बी टॉट, दे कैन ओनली बी लर्न। आपको खुद सीखनी पड़ती हैं, कोई सिखा नहीं सकता है आपको। तो वहाँ पे आपको टेक्निकल चीज़ें सिखा देंगे, टर्मिनोलॉजी सिखा देंगे, पढ़ा देंगे, पर एट द एंड इट इज़ जस्ट यू। तो मुझे कहीं न कहीं ये कॉन्फिडेंस था या बिलीफ था, या कुछ भी कह लो, फेथ था, या एक कॉलिंग थी कि नहीं, मेरे लिए नहीं बनाया वो। क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर रहा था। अगर मैं कॉलेज जाता, पहली बात तो बाज़ार में काम ही ना कर पाता। मेरा टाइम सारा वहाँ चला जाता। 950 है। प्लस मैं और भी बहुत काम कर रहा था। 12वीं तक तो मैंने काफ़ी और काम करे, क्योंकि 12वीं तो मैंने 1.5 साल पहले ही पास आउट करी है। तो वो 1.5 साल तक काफ़ी रिजल्ट्स आ गए थे। जभी भी पेरेंट्स को मनाना थोड़ा मुश्किल तो था, स्पेशली पापा को। बिकॉज़ ही वाज़ लाइक कि कॉलेज नहीं जाओगे तो कैसे होगा? नहीं, कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो, डिग्री तो लेनी ही लेनी है ना। बट द सिंपल थिंग इज़ कि अगर आपको एक जॉब नहीं करनी, अगर आप किसी को डिग्री दिखानी नहीं है, तो फिर आई डोंट थिंक इट मैटर्स इफ यू आर डूइंग गुड फॉर योरसेल्फ। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, गलत रास्ते पे नहीं हो तो ठीक है। दैट वाज़ द बेसिक लॉजिक। पर बस यही था कि हाँ, हम सही रास्ते पे हैं। और ये जो 3 साल मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, प्लान सिंपल था। इन 3 सालों में मेरे को बहुत आगे निकलना है। क्या मैं निकल सकता हूँ? मेरे अंदर से जवाब आ रहा था यस। एंड दैट वाज़ द सिंपलेस्ट रीज़न ऑफ नॉट गोइंग टू कॉलेज। क्योंकि मुझे पता था 3 साल अगर मैं खुद को ही दे दूँगा ये समय, तो मैं काफ़ी आगे निकल जाऊँगा। अभी 1.5 साल हुआ है उस समय में से, और वाहिगुरू जी बड़ी कृपा रही है। 1.5 साल ਵਿੱਚ काफ़ी कुछ होया है, ਤੇ 1.5 साल अजे हो रहे हैं, एंड आई एम वेरी श्योर ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। सो वी आर डूइंग ऑल राइट। ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਅੱਡ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਨੇ। 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਯੂਜ਼ ਦੋਜ਼ 3 ਈਅਰਸ, 3 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿਦ ਕਾਲਜ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 3 ਸਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਵੀ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਬਟ ਜਦ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਰਿੰਗ ਕੰਮ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੈਸਾ? ऑनेस्टली फ्री स्टाइल ही ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਵੇਚਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕਰੀਬਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਮਿਡ ਟਰਮ ਔਰ ਸੋ। ਬਟ डिलीवरी ਹੁੰਦੀ ਸੀ। अगेन ऑफ कोर्स इट इज़ बोरिंग, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? नहीं शेयर चलेगा तो कुछ कर नहीं सकते। आपने अपना पैसा दे दिया है, अब आपको वेट करना है, बैठना है, उसको परफॉर्म होने देना है। तो वो कोई बहुत एक्टिविटी का काम नहीं। हाँ, सिर्फ रिसर्च कर सकते हो आप, पर कितनी रिसर्च भी कर लोगे? एट द एंड ऑफ द डे देयर इज सम फ्री टाइम लेफ्ट वेयर यू जस्ट हैव टू सिट। तो वो तो आपकी बात सही है, बोरिंग तो काम बहुत था, इसीलिए मैं बाकी काम साइड बाय साइड कर रहा था। वी जस्ट कम ऑन टू दैट। ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ? ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੀ ਲੈਵਰੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਲੈਵਰੇਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 24 ਆਵਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆ ਕਿ ਨਾ, ਗਲੈਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਲੰਬੀ ਟਰਮ ਵਾਲੀ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਦੇ? पहला 2 साल सिर्फ डे ट्रेडिंग, तो इसलिए पहला 2 साल हाथ भी बहुत चलाया है। देखो, डे ट्रेडिंग कोई अगर कर पा रहा है, कांग्रेचुलेशंस, बिकॉज़ बहुत ही औखी चीज़ है मेरे हिसाब नाल टू सस्टेन इट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि आप पैसा बहुत जल्दी बनाना चाह रहे हो, आप हर सेकंड सही नहीं हो सकते कि शेयर बढ़ने वाला है, घटने वाला है। आपको भी नहीं पता है, और किसी बहुत बड़े इन्वेस्टर को भी नहीं पता है, भगवान को भी नहीं पता। अगर कोई बोल रहा है कि मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, तो झूठ बोल रहा है। तो आई बिलीव वो एकदम, मतलब बहुत ही गलत आइडियोलॉजी है, ये सस्टेनेबल नहीं है। पर मैंने भी गलती करी वो, 2 साल तक मैंने फिर वही किया, जैसे आपने बोला बिल्कुल सही बात की, तो मार्जिन मिलता है, लेवरेज मिलता है, उधारी मिलती है। तो एक्साइटमेंट तो वही है कि पैसा जल्दी बनेगा, ज़्यादा बनेगा। तो मैंने बहुत किया, बहुत पैसा कमाया भी, बट सारा गँवा दिया। अगेन एज़ आई सेड, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। आप एक बार सही हो गए, पर जब एक बार गलत हो गए, तो आपकी गलती इतनी बड़ी हो जाएगी कि सारा वापस का चले जाएगा। क्यों? क्योंकि लेवरेज है, उधारी का पैसा है। आप 1 का 10 करके ले रहे हो, तो नुकसान भी तो 10 पे ही होगा। जब मुनाफ़ा 10 पे होता है, तो घाटा भी 10 पे ही होता है। और जो घाटा 10 पे होता है ना, वो आपके इमोशन से खेलता है। उस टाइम आप ऐसा पैनिक करते हो कि आपको समझ नहीं आता क्या करना है, और वो घाटा बहुत बड़ा हो जाता है। ये सबके साथ होता है मोस्टली। बहुत ही कम मैंने सक्सेसफुल डे ट्रेडर्स देखे हैं, वो भी अगर हों तब हों जब उन्होंने बहुत साल एक चीज़ पे लगाए हैं, या कोई स्ट्रैटेजी को समझा है, या बहुत डिसिप्लिन इम्बाइब किया है अपने अंदर, वरना बहुत ही औखा है। तो इसलिए मैं छੱਡता वो चीज़ 2 साल बाद, या रियलाइज़ कि आई एम बेटर इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इट विल मेक मी मनी, नंबर 1 बिकॉज़ आई हैव टाइम बाय माय साइड। मैं छोटा हैगा बहुत, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। जरा बोलते हैं ना, वॉरेन बफे क्यों नहीं? नॉट बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टर, जस्ट बिकॉज ही हैड अ लॉट ऑफ टाइम ਕੰਪਾਊਂਡਿੰग। कंपाउंडिंग। तो उन्होंने 11 साल की उम्र से, अभी वो शायद 90 के हैं, तब तक गलतियां नहीं करी। सक्सेस इज नॉट अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजन, इट्स बेसिकली नॉट अबाउट स्क्रूइंग अप। गलती ना करना भी सक्सेस है। 11 साल से 90 साल कोई इंसान कैसे कंट्रोल रख सकता है अपने ऊपर? अनइमेजिनेबल है। उन्होंने वो किया, इसलिए वो आज हैं जो वो हैं। तो मेरी सिंपल फिलॉसफी यही थी कि यार, अगर उन्होंने किया, तो फिर अगर मैं भी उसमें से कुछ छोटा-सा भी कर लूँ, तो लाइफ़ तो सुधर जाएगी। तो व्हाई टू टेक दैट मच स्ट्रेस? तो उसके बाद मेरी आइडियोलॉजी चेंज हुई। बट आसान नहीं था, क्योंकि उस टाइम जब आपको एक बार चस्का लग गया उसका, तो वो आपको छोड़ना बहुत मुश्किल पड़ेगा। मुश्किल हुआ, बट येस, स्लोली बट श्योरली वो जर्नी चेंज हुई, एंड नाउ आई फोकस प्योरली ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड सिप्स एवरी मंथ ऑटोमेटेड, प्लस इवन इन स्टॉक्स मैं लंबे टाइम ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ, ਵੈਲਿਊ ਢੂੰढਾਂ, ਤੇ ਆਈ ਕੀਪ ਥਿੰਗਸ ਸਿੰਪਲ, ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। दैट इज़ प्योरली व्हाट आई। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੂੰਝਨਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਗਈ, ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਕਸ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ? ठीक है, तो पहली गल, एक स्टॉक नहीं है, एक स्टॉक एक बिजनेस है, राइट? ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग समझते हैं कि स्टॉक है, ले लो, कोई भी स्टॉक आया ले लो, है बढ़ रहा है, घट रहा है, ले लो, बेच दो। इट्स नॉट दैट ईजी। इस तरह होता तो फिर हर कोई पैसा कमा लेंदा, तो वो तो गैम्बलिंग हो गई। पर अगर तुसी एक्चुअल इन्वेस्टिंग करनी है, तो समझना है बिजनेस नो। जो भी स्टॉक होंदा है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, बट टाटा मोटर्स फॉर एग्जाम्पल, HDFC बैंक फॉर एग्जाम्पल, SBI फॉर एग्जाम्पल, ये बिजनेसिस नहीं, तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ स्टॉक है, ਅਸੀਂ एक हिस्सा खरीद रहे हैं। सो इफ आई वांट टू ओन अ बिजनेस, आई हैव टू मेक श्योर कि बिजनेस ग्रोइंग होए, एंड फॉर दैट आई हैव 2 और 3 बेसिक स्टेप्स, वेरी वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं, कोई भी जाके पढ़ सकता है, देख सकता है, फ्री विच डेटा अवेलेबल होता है। फर्स्टली यू हैव टू मेक श्योर कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यूड ग्रोथ इंडस्ट्री विच होवे। इस तरह दी सैक्टर जो कंटिन्यूड ग्रोथ रहिंदी जिथे, फॉर एग्जाम्पल पावर सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, FMCG सेक्टर है, सारी इंडस्ट्रीज ने
अलग-अलग, राइट? तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो ऐसी इंडस्ट्री में हो जहाँ पे काम बहुत है और आगे बढ़ता रहेगा, लगातार बढ़ता रहेगा, लगातार बढ़ता रहेगा। साइज़ बढ़ता रहेगा, जितना साइज़ बढ़ेगा मेरी कंपनी का स्कोप उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो काम ही 100 करोड़ का है, उससे ऊपर की मार्केट ही नहीं है, तो मेरी कंपनी कैसे 1000 करोड़ बना लेगी? वो पॉसिबल ही नहीं है ना, स्कोप ही नहीं है। आप इतनी छोटी नीश इंडस्ट्री में काम ही क्यों कर रहे हो? यू नीड टू प्ले लार्ज, यू नीड टू फाइंड लार्ज सेक्टर्स, लार्ज अपॉर्च्युनिटीज़ इन कंट्री लाइक इंडिया। हिंदुस्तान जैसी कंट्री में बहुत अपॉर्च्युनिटी बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं और बहुत हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बाहर नहीं मिलती हैं आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटी। ये इमर्जिंग कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे मिल रही हैं, तो यू हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। तो पहली बात, आपको ऐसा सेक्टर पकड़ना है जिसमें कंटिन्यूड ग्रोथ हो, बहुत काम हो जिस सेक्टर में। जब वो पकड़ लिया तो उनकी कंपनीज़ ढूँढो, इस सेक्टर में कौन सी कंपनी काम कर रही है। वो कंपनी को मेक श्योर करो, कोई पर्टिकुलर कंपनी ढूँढ रहे हो, वो पैसा कमाती हो। अगर वो कमा नहीं रही है तो आपको कमा के दे नहीं सकती। लॉजिक इज़ सिंपल, लॉस मेकिंग कंपनी से दूर रहना, या जो कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा उससे दूर रहना है। सिंपल सी बात है। द कंपनी शुड हैव अर्निंग्स एंड द अर्निंग्स शुड ग्रो, बिकॉज़ द स्टॉक मार्केट मूव्स ऑन अर्निंग्स। बहुत लोगों को लगता है कि शेयर प्राइस बढ़ता-घटता क्यों है? रोज़ की खरीदी-बेची में तो वो सप्लाई डिमांड की वजह से बढ़ता-घटता है, बट लॉन्ग टर्म में हमेशा अर्निंग्स को फॉलो करता है। आप कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी उठा के देखो, अभी आपको लगेगा हो सकता है वो बढ़ रही है, पर आप मेरे से लिखवा लो, आप 7, 8, 10 साल के पीरियड में देखो, वो सारी बर्बाद होंगी। एंड प्रॉफिटेबल कंपनीज़ एट द एंड ऑफ द डे जितना भी खराब टाइम आए वो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो अर्निंग्स पे स्टॉक मार्केट चलती है। अर्निंग्स होनी चाहिए और अर्निंग्स ग्रो होनी चाहिए। अगर ये है तो आपका शेयर बढ़ेगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। पकड़ के आराम से बैठो। दैट इज़ द सिंपलेस्ट लॉजिक। और उसके बाद ऑफ कोर्स आपको जितना सस्ते में मिल रहा है उतना बेटर है। अब इतनी अच्छी कंपनी तो पकड़ ली, पर उसको गलत दाम पे लोगे तो थोड़ी ना पैसा बनेगा, राइट? तो थिंक ऑफ इट लाइक अ डिस्काउंट। जैसे कि हम मर्सिडीज़ लेने जा रहे हैं, मर्सिडीज़ गाड़ी बहुत अच्छी है, आपको बहुत फीचर्स मिल रहे हैं उतने पैसे देने के लिए। पर ऑफ कोर्स अगर वही फीचर्स, वही सेम गाड़ी आपको सस्ते दाम में मिल जाएँगे, विन-विन है ना? 90 लाख की मर्सिडीज़ मेरे को 80 में मिल रही है। क्यों? क्योंकि एक्स वाई ज़ेड रीज़न हो सकता है। अभी मार्केट वीक है या उसकी बिक नहीं रही गाड़ियाँ, वो डिस्काउंट दे रहा है, जो भी है, वो मेरे को 80 में दे रहा है। जस्ट लाइक दैट, अगर ₹90 का शेयर है, कंपनी अच्छी है, कंपनी वही है, अर्निंग्स है, अर्निंग्स ग्रोथ है, कंपनी सॉलिड है, पर वो मेरे को 80 में मिल रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे है। ये अभी हो रहा है। पिछले 2 हफ्ते से मार्केट गिर रही है, ये अभी हो रहा है। तो आप पकड़ो उसको, क्यों नहीं? दैट इज़ द सिंपलेस्ट लॉजिक, बट अगेन इट इज़ अबाउट होल्डिंग ऑन टू इट। लोग पकड़ भी लेते हैं, रिसर्च भी कर लेते हैं, पर बैठ नहीं पाते हैं, वेट नहीं कर पाते हैं। तो इट इज़ अबाउट द नॉट अबाउट द ब्रेन्स, अबाउट द टेम्परामेंट, जैसे कहते हैं ना, दिमाग तो इतना कहाँ ही लगाना है, अपने को कंट्रोल करना आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस काम में। जैसे मैंने बताया ये 2-3 स्टेप्स हैं, अब ये तो हर एक कोई सुन सकता है, हर एक कोई जान सकता है, पर हर एक कोई वॉरेन बफेट नहीं बन सकता है, क्योंकि वो 80 सालों तक कंट्रोल रखना जो है वो मेन टास्क है। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਗਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਖ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਈਕ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦ ਸਟਾਕ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਸਟਾਕ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਸਟਾਕ ਨੂੰ। तो पहले एग्ज़िट तो आने एग्ज़िट क्यों करना? अगेन रूल्स ने कुछ-कुछ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, एग्ज़िट करो। ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਹੋ ਗਿਆ, एग्ज़िट करो, ठीक है? अदरवाइज़ एग्ज़िट करो ही ना, क्यों करना एग्ज़िट? अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फ्री फंड्स ने फॉर योर इन्वेस्टमेंट, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, एंड द बिज़नेस इज़ ग्रोइंग। अगर वो इस साल 100 का है, अगले साल 110 का हो रहा है, 120 का हो रहा है, 21 का हो रहा है, जितना टाइम दोगे उतना बढ़ेगा। तो क्यों बेचना? बेचने का मतलब क्या है? बेचना पाप है, ऐसा बोलते हैं। इन्वेस्टिंग में बेचना पाप होता है। खरीदना है हमें, बैठना है खरीद के, तभी तो इन्वेस्टिंग होगी। पर ऑफ कोर्स अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, या अगर आपका गोल अचीव हो गया है, बेचो और बाहर जाओ, आराम से बैठो, एन्जॉय करो लाइफ़ को। पर अगर वो नहीं हुआ है, तो क्यों बेचना? मैं एक शेयर भी नहीं बेचता हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो अलग बात है। इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, मतलब लंबे टाइम की बात। अगर मैंने एक कंपनी चुन ली है, मुझे लग रहा है वो 10 साल, 20 साल, 30 साल मेरा पैसा कंपाउंड करती रहेगी, या कोई मैंने म्यूचुअल फंड में एसआईपी करी है, कुछ भी है, जो कंपाउंडिंग एक एसेट है, मैं क्यों बेचूँगा उसको? मैं अभी 19 साल का हूँ, मेरे पास आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है ग्रो करने के लिए। अभी मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है और मेरा एसेट कंपाउंड करना बंद नहीं कर रहा है। जब तक ये दोनों बातें नहीं हो रही है पूरी, मैं रखे रहो, सिंपल सी बात है। तो लोग बिना रीज़न के जो एग्ज़िट करते हैं ना, तभी वो रिग्रेट आता है कि यार हमने बेच दिया, वो बढ़ गया। या हमने नहीं बेच पाया, वो गिर गया, है ना? ये रिग्रेट्स, मार्केट इज़ फुल ऑफ रिग्रेट्स, बट यू कैन ट्राई टू रिड्यूस इट। चीज़ों को सिंपल करोगे तो रिग्रेट्स कम हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू ट्राई, कि ऐसी मतलब चीज़ें तो सिंपल रखिए, ते कुछ रूल्स, कुछ फ्रेमवर्क्स यूज़ कर लिए कि नहीं मेरा गोल अचीव हो गया तो मैं बेचाँगा, नहीं तो नहीं बेचना, ठीक है? बाकी कितने टाइम रखना है, अगेन डिपेंड्स ऑन दिस, कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं है।
कोई शेयर हो सकता है 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਜਾਏ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਤੇ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦ ਸਟਾਕ, ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਦ ਤੱਕ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। थिंक ऑफ इट एज अ कंपाउंडिंग स्टोरी कि कंटिन्यूली मेरा पैसा हर साल या हर 5 साल या जितना मैं टाइम दूंगा उतना बढ़ेगा। इट इज़ अबाउट द टाइम यू हैव गिवन टू द मार्केट। जितना आप टाइम लोगे ना उतना इस बाजार से लेके जाओगे, पर वो टाइम जो है बहुत कम लोग दे पाते। यही बात है। और दूसरा आपका सवाल, बहुत अच्छी बात आपने क्वेश्चन पूछा कि सेकेंडरी इनकम कैसे लाएं, क्योंकि अगर आप एक शेयर में 1 लाख ला के बैठ जाओगे तो बॉस घर चलेगा नहीं। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो शेयर जितना भी बढ़ जाए, 1 साल में 15% रिटर्न देते हैं, 20% देते हैं, मैं कह रहा हूँ आपका शेयर डबल भी हो गया, आपने लाख लगाए 2 लाख हो गए, आप पूरे साल में लाख कमा के क्या करोगे? और बहुत लोगों का कैपिटल लाख ही है, जिसका 10 लाख भी है, चलो मानो, क्या होगा उससे? कुछ नहीं चलता कर, राइट? आप बड़े तो बन नहीं पाओगे। तो इन्वेस्टिंग इसलिए कहते हैं ना, इट्स अबाउट मतलब ग्रोइंग योर वेल्थ, नॉट क्रिएटिंग वेल्थ। तो मतलब जो बेस कैपिटल है, बेस कैपिटल जो शुरुआत के आपकी एक पैसे हैं या कॉर्पस है, वो तो आपको बनाना ही पड़ेगा खुद से, है ना? अगर आप बोलोगे मैं 100 रुपये इन्वेस्टिंग में लेके आऊँ और मैं बन जाऊँ मिलियनर, वो ना थोड़ा मुश्किल है, राइट? आप शुरुआत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आजकल 100 रुपये की एसआईपी पे शुरुआत हो गई है, शुरुआत जरूर करो, मैं सबको कहता हूँ शुरुआत जरूर करो, क्योंकि उससे एक हैबिट बिल्ड होती है। पर एक्स्ट्रा पैसे तो आपको डालना ही पड़ेगा ना। अब जैसे मैंने 2000 से शुरुआत की है, ये थोड़ी ना मेरे 2000 इतने बन गए, वो तो मेरे और भी डाले खुद से, बाकी जगह से कमाए, यहाँ पे डाले, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करना है, अब वो आप देखो, आपके पास कोई भी टैलेंट है, आप कंटेंट बनाओ, या आप जैसे मैं क्लासेस देता हूँ, बच्चों को चेस सिखाता हूँ, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करो, लोगों को सिखाओ, पढ़ाओ, जो भी आपको आता है अपनी स्किल शो करो, या आप कहीं काम करो, जॉब करो, फ्रीलांसिंग करो, जो आपको करना करो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही पैसा फिर आके इन्वेस्टिंग में लगेगा और वो ग्रो होगा। तो आमदनी के लिए नहीं है इन्वेस्टिंग, आमदनी निकालने के लिए नहीं है, ये धन बनाने के लिए है। तो फ़र्क है दोनों बातों में बहुत। लोग इसको आमदनी निकालने के लिए देखते हैं, इट इज़ नॉट अबाउट क्रिएटिंग इनकम, इट इज़ अबाउट जनरेटिंग वेल्थ। तो आपको इनकम ला के इधर डालनी पड़ेगी और वेल्थ बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हर महीने ऐसा कुछ आएगा, कुछ नहीं आना है, आधा से डालना ही पड़ता है। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡਸ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪੇਇੰਗ ਸਟਾਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡਸ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਟਰ नहीं करते ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? नहीं, नॉट फॉर मी, बिकॉज़ लॉजिक सिंपल होगा कि डिविडेंड स्टॉक्स या ग्रोथ स्टॉक्स 2 अलग-अलग कैटेगरी होती हैं। तो डिविडेंड्स जो कंपनी देती हैं यूजुअली, मोस्ट प्रोबेबली, वो कंपनीज़ इतनी ज़्यादा हाई ग्रोइंग नहीं होती। मोस्ट प्रोबेबली कोई एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट ज़्यादातर क्या है, लॉजिक देखो सिंपल है। डिविडेंड कंपनी कब दे रही है? अपने प्रॉफिट्स में से निकाल, रिजर्व्स में से निकाल के दे रही है। तो वो क्यों डिविडेंड्स देगी अगर उसके पास और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आगे के लिए है, राइट? आज मेरे पास 100 रुपये मेरा प्रॉफिट है, मान लो एग्जांपल। मेरे को पता ही है मैं 100 रुपये का प्रॉफिट अगले साल फिर लगा के 100 को 200 बना सकता हूँ। तो मैं 100 किसी को क्यों दूँगा? बट व्हेन आई नो कि मेरे पास और स्कोप नहीं है, तब मैं शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए या प्रॉफिट बाँटने के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। उसको हम बोलते हैं डिविडेंड्स, है ना? सिंपल सी बात। तो वो बड़ी कंपनी आप यूजुअली देखोगे, लार्जर कैप कंपनीज़ डिविडेंड देती हैं, या पीएसयू कंपनी, सरकारी कंपनीज़ में आगे ज़्यादा स्कोप नहीं बचता है। मतलब ग्रोथ बहुत स्लो है। और ऑन द अदर हैंड स्मॉल कैप कंपनीज़, बहुत हाई ग्रोथ कंपनीज़ ज़्यादा डिविडेंड्स नहीं देंगी। दे विल बी रीइन्वेस्टिंग देयर प्रॉफिट्स इन देयर ओन बिज़नेस टू ग्रो फर्दर। तो आपको चूज़ करना है आपको क्या चाहिए। रेगुलर इनकम चाहिए इफ़ यू आर समवन रिटायर्ड, और समवन वेरी रिस्क अवर्स, जिसको ज़्यादा रिस्क पंगा नहीं लेना है, डिविडेंड इनकम ले लो, है ना? वो फिक्स्ड आता रहेगा आपको थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा। पर मेरे जैसे बंदे के लिए मुझे क्या करना है फिक्स्ड इनकम अभी? मेरे को तो लाइफ में ग्रो करना है, करियर ही यहाँ पे बनाना है। उसके लिए आई हैव टू थिंक बिग, थिंक लार्ज, एंड फॉर दैट वी चूज़ ग्रोथ कंपनीज़, जहाँ पे ग्रोथ है। हमें ग्रोथ चाहिए, टॉप ग्रोथ, टॉप अर्निंग्स, हमें वो चाहिए बस। हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है। इंडस्ट्री में बेस्ट अर्निंग्स कहाँ है, मुझे वो चेज़ करना है, और बेस्ट अपॉर्चुनिटी साइज़ कहाँ है, बड़ा से बड़ा, मैं तो वहाँ जाऊँ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੂਨੇਵਾਲਾ ਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀ ਬੈਗਰ ਟਾਈਟਨ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਲਟੀ ਬੈਗਰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਅ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ? मिले ने, कुछ-कुछ मिले ने बिल्कुल, पर ऑफ कोर्स देखो, हुणे जर्नी बड़ी छोटी है, ते इस तरह नहीं कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਟਾਈਟਨ ਵਰਗੇ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਆਰ ਬਡਿੰਗ ਮਲਟੀਬੈਗਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਆਈ ਹੈਵ ਸਮ ਆਫ them I have in portfolio, you can say। Again disclaimer, because portfolio ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। बिल्कुल, I would not name it, but एक स्टॉक था रिसेंटली, वो कैपिटल मार्केट स्पेस में काम करती है कंपनी, मैं इतना बता सकता हूँ। वो करीबन 250 रुपये शेयर से हमने देखना शुरू किया।
और 300 पे हमने थोड़ा उठाना शुरू किया एंड रिसेंटली इट मेड अ हाई ऑफ 1050। तो एक साल में करीबन 3 साढ़े 3 गुना हुआ शेयर। अभी नीचे भी आया हुआ है 2 हफ्ते से मार्केट गिरी है, बट इट्स स्टिल इन माय पोर्टफोलियो। आई बिलीव इट विल डू मच बेटर। इधर से और भी बढ़ना चाहिए। अगेन जैसे मैंने आपको बोला, स्पेस जो है ना वो बड़ी एक्साइटिंग होनी चाहिए। वो कंपनी काम ही कैपिटल मार्केट में करती है। कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, वो एक ब्रोकरेज फर्म है एक्चुअली। तो अगर स्टॉक मार्केट ग्रो करेंगी तो ये कंपनी तो ग्रो करेगी, तो इसका धंधा बढ़ते रहेगा, वॉल्यूम बढ़ती रहेंगी। तो अपॉर्चुनिटी साइज जो है ना वो रुकने वाला नहीं है, इन कंपनीज के लिए बढ़ता ही रहेगा। एंड हेंस कैपिटल मार्केट्स इज अ ब्यूटीफुल स्पेस टू लुक एट। फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल मार्केट्स ए वो स्पेसेस ने जितने तो भी जरूर नजर आनी चाहिए, बिकॉज पैसा तो फ्लो हो ही रहा है ना। पैसा कितने जाएगा? इन्वेस्टमेंट जाएगा, बैंक जाएगा, कितने जाएगा? राइट, कंजम्पशन में जाएगा। तो पैसे से रिगार्डिंग जो भी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट कराने जो हेल्प कर रही हैं, जो ब्रोकरेजेस ने जो थोड़ा पैसा स्टोर कर रही हैं, जो भी ने या सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, उन्होंने तो जरूर नजर डू हैव वेरी हाई पोटेंशियल। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ? ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਉੱਠੂਗੀ, ਵੀ ਇਹ ਸਟਾਕ ਉੱਠੂਗਾ, ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज़ अगेन ट्रेडिंग का काम है ही नहीं ना हुन, इन्वेस्टिंग का काम है, तो फिर न्यूज़ का मतलब ही नहीं है। थोड़ी बहुत न्यूज़ पढ़ते हैं, बेसिक जाना नहीं कि चल की रहा है, बट नेवर ट्रेडिंग ऑन द न्यूज़, बिकॉज़ अगेन न्यूज़ पे तो फिर घाटा होने के चांस ज़्यादा रहता है। आपके पास जब तक न्यूज़ आती है, तब तक सब कुछ हो चुका होता है। तो पहले करता था मैं ये गलती, जब मैं ट्रेडर था कि अरे न्यूज़ आई खरीदो, बेचो, जो टीवी पे हुआ। वो टीवी पे जब तक आ रहा है तब तक एक्शन हो चुका है, आपको बाद में आता है। क्योंकि आप समझो हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास जब तक चीज़ आ रही है, आप इतने समझदार थोड़ी ना हो कि आप न्यूज़ में बैठ के पैसा कमा लोगे। तो वो कहते हैं ना, बाय द रूमर सेल द न्यूज़। मतलब कि न्यूज़ पे तो एक्चुअली जो हो रहा है उसका उल्टा करना है, मतलब क्योंकि वहाँ पे तो चीज़ बाद में आती है, तब तक तो चीज़ उल्टी होती है एंड बहुत बारी होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? रिजल्ट्स तो कंपनी के अच्छे आए थे, गिर क्यों गई कंपनी? रिजल्ट्स कंपनी के बेकार आए थे, वो उठ क्यों गई? पहले आप नहीं देखते हो क्या हुआ है। ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, बड़े-बड़े बैठे हैं। एब्सोल्युटली, वो पहले क्या हुआ है आप चार्ट में देखोगे तो पता चलेगा। कभी-कभी क्या होता है, बहुत एक कॉमन एग्जांपल है, अगेन आई विल नॉट नेम द स्टॉक, पर एक बहुत बड़ा साइज़ बैंक है, मतलब सबको पता ही होगा। तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है, उसके जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक है समझ लो, वो महीने पहले से बाइंग होनी शुरू होती है। मतलब काफ़ी बार हिस्टोरिकल चार्ट्स में देखा गया है। और वो काफ़ी बाइंग होती है और रिजल्ट्स के बाद टक प्रॉफिट बुकिंग, जबकि रिजल्ट अच्छे भी होते हैं। लोग बोलते हैं ये क्या हुआ? पहले से एक्यूमुलेशन हो रही थी, वो तो कमा के निकल गए, आप आज दिख रहे हो। तो आपको इसलिए भाव को पढ़ना है, भाव भगवान छे कहते हैं ना, यू नीड टू स्टडी द प्राइस, व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाई इज़ इट हैपनिंग। न्यूज़ तो बहुत बाद में आती है, आप तो एकदम लास्ट पर्सन हो, मैं भी। मैं कोई इंस्टीट्यूशन थोड़ी ना हूँ, मैं तो 19 साल का जवान लड़का आपके सामने हूँ, मेरे पास कहाँ न्यूज़ आती है इतनी जल्दी। सो इसलिए हमें समझना है कि यार इतना आसान नहीं हो सकता है, एंड इसलिए इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, जानना है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अदरवाइज़ घाटा ही होगा। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੋ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਰਿਓ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਹੋਰ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਇਹ ਉਹ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਬਣਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ? देखो, विजन तो हैगा, बट मैनू मेरी फ्रीडम बड़ी प्यारी है, तो इसलिए मैं ज़्यादा पंगा नहीं लेंदा, बिकॉज इस काम में बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी ने। राइट, आप अगर ब्रोकरेज हो या अगर आप एडवाइज़र हो या अगर आप एक एनालिस्ट हो रजिस्टर्ड फर्म है आपकी, तो फिर आप खुद इतनी खरीदी बेची नहीं कर सकते, या आप पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप क्या खरीद रहे हो, क्या बेच रहे हो, कब, कहाँ, कैसे, और बहुत चीज़ें। और फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स होती है। आई वांट टू बी एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, फ्री बर्ड कहते हैं ना, जूनियर वाला जैसे, वही मेरी इंस्पिरेशन है समझ लो। और वैसे अपनी लाइफ अच्छे से बितानी है, पीसफुली बितानी है। तो विजन तो है, बट ओनली इफ आई एम एबल टू डू इट कीपिंग माई फ्रीडम अलाइव, वरना नहीं। वरना फिर फ़ायदा नहीं है, अगर मेरी फ्रीडम जाती है तो फिर वो कम करना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं शेयर बाजार में इसलिए, हाँ, क्योंकि फ्रीडम बहुत है इसका में, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब दैट। बट हाँ, डेफिनेटली अगर कभी मौका लगे, वी विल लुक इनटू इट, बट फॉर नाउ नथिंग नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸੀਆਰਸ 'ਚ, ਕਰੋੜਸ 'ਚ ਜਾਂ ਲੈਕਸ 'ਚ? फ्लैक्स डे। ਲੈਕਸ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਾਲ? ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। पोर्टफोलियो तो यार मतलब कोई एंड ही नहीं है, ज़ीरोज़ लाई जाओ, तो गेम तो चली जाती है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ ब्यूटीफुल अबाउट द मार्केट्स। कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, मतलब ऐसा समुंदर है कि बस आप सोच ही नहीं सकते।
हर एक इंसान के पास कोई ना कोई ऊपर और है, और जितने भी ज़ीरोज़ लगा लो यहाँ पे कम है। यहाँ पे करोड़, इवन 100, 200, 500 करोड़ तो पीनट्स हैं। वो आजकल मैं बहुत लोगों को जैसे पॉडकास्ट ही देखता हूँ, और मोस्टली पॉडकास्ट में आपके जो भी इन्वेस्टर्स आते हैं, मारवाड़ी लोग होते हैं, राजस्थानी, गुजराती लोग होते हैं। मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब वो लोग आप देख के, इन लोगों को देख के पता चलता है कितना बड़ी मार्केट है, बाज़ार कितना बड़ा है और इनकी सोच कितनी बड़ी है। हम तो कुछ सोच नहीं पाते हैं। हम लोग अपने में ही रह जाते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, घूम लो, फिर लो, ये खा लो, पी लो। पर उनको देख के लगता है कि कितना धैर्य है, कितने शांत हैं, और पता चलता है नेटवर्थ कितनी, तो 5,000 करोड़, 10,000 करोड़। तो कोई मतलब लिमिट ही नहीं है। तो ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो गेम तो बहुत बड़ा है, ऐसा कोई वो नहीं है। पर अभी की आप बात करो तो आई एम मैनेजिंग इन सीआर, आई एम मैनेजिंग अ कपल ऑफ करोड्स। बट इफ यू आस्क अबाउट पर्सनल पोर्टफोलियो, इट इज़ स्टिल इन लैक्स। पर ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਏਮ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ 15 ਕਰੋੜ ਤੱਕ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਫੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਫੰਡ 'ਚ ਕੌਣ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਕੌਣ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? आई डोंट मार्केट एनी सच सर्विस, आई एम नॉट एन एडवाइज़र, आई डोंट हैव अ फर्म, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मैंने बताया ना आपको, मैं फ्री लाइफ चाहता हूँ, तो मैं खुद के लिए ही काम करता हूँ, खुद अपने बंदों के लिए काम करता हूँ, बस दैट इज़ इट। अपने ही बंदे, मैं खुद, दैट्स ऑल। ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹੀ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਲੈਕਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ, ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਰੋੜਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਕੈਮਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਕੈਮਸ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਕੈਮਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखो वी आर डूइंग बिजनेस एंड एवरीवन विल डू बिजनेस एट देयर पार्ट, है ना? पर आपको थोड़ा खुद समझदार होना है, केयरफुल होना है, देखना है, क्योंकि हर बंदा ही अगर ये कर रहा है, आपको ये समझना है कि स्पेशली बच्चे, जवान लोग तो बहुत ही कर रहे हैं। मतलब मेरे उम्र की 18-19 साल के लोग आपको दिखेंगे, घड़ी दिखाएंगे आपको अपने हाथ में, नोट दिखाएंगे, यहाँ पे कैश कर देंगे, और बोलेंगे देखो मैं ट्रेडर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा कोर्स खरीदो, यू विल बी मिलियनेयर इन अ ईयर, इन 2 ईयर, 3 ईयर। इट इज़ नॉट दैट ईजी। अगर हर कोई बन जाता तो बात ही क्या होती। और स्पेशली जो इतना बड़ा आदमी होगा, मैंने बताया, मैं इन लोगों को सुनता हूँ, जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इनमें 10-10 हज़ार करोड़ कमाने के बाद भी जो धैर्य है, जो शांति है, वो देख के पता चलता है कि इन्होंने क्यों 10 हज़ार करोड़ कमाया। और ये जो बच्चे-बच्चे उछलते हैं ना, वो हैं ही नकली, आपको वो पता चल जाना चाहिए। अगर नहीं पता चल रहा है, देन यू गॉट टू बी स्मार्टर, बिकॉज़ नो वन एल्स कैन हेल्प यू, है ना? अगर आप बोलो कि कोर्सेज़ बंद हो जाए, वो तो ज़िंदा अपना करेंगे, राइट? और उसमें मेरे हिसाब से कोई गलती भी नहीं है। हाँ, गलती ये है कि वो गलत फ़ॉल्स क्लेम ना, एडवर्टीजमेंट फॉर बिल्कुल फ़ॉल्स क्लेम ना करें कि मिलियनेयर बना देंगे, या टिप्स ना दें, या बिना रजिस्ट्रेशन के काम ना करें, वो सब उनकी गलती है। पर एट द एंड अब हम उसको रोक तो सकते नहीं। तो अगेन, जैसे मैंने बोला, आपको समझना है कि लार्जर पिक्चर देखनी है। कभी भी ईज़ी मनी की तरफ मत जाओ। अर्ली सक्सेस इज़ अ स्कैम, कहते हैं ना, स्कैम होता है अर्ली सक्सेस। वक़्त लगता है चीज़ां ਨੂੰ प्ले आउट ਹੁੰਦੀਆਂ, स्पेशली इन्वेस्टिंग ਵਿੱਚ। इन्वेस्टिंग इज़ अ लॉन्ग रन गेम। इन्वेस्टिंग इज़ लाइक लाइफ। ज़िंदगी जिस तरह है ना, वैसे ही इन्वेस्टिंग है। थोड़ा-थोड़ा, हौली-हौली पाई जाओ, पाई जाओ, पाई जाओ, सीखी जाओ। इट टेक्स टाइम टू ग्रो। इट इज़ लाइक प्लांटिंग अ सीड, इट टेक्स टाइम टू ग्रो। जब आप वो समझ लोगे तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको किसी से सीखना भी है, सीखो, बिल्कुल, मेंटरशिप लो। पर सीखने के लिए कि टिप्स लेना, ये सब करना तो बिल्कुल नॉनसेंस है, इट इज़ क्रैप। मतलब कि कोई आपको टिप दे रहा है। टिप क्या होती है यार? मतलब चलो, अगर आपको कोई सिखा रहा है, या कोई फ्रेमवर्क है, या कोई इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो है, अलग बात है कि 5 साल के लिए कोई आपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कोई सजेशन नहीं, कुछ है। रोज़ की टिप दे रहा है, रोज़ कौन सही हो सकता है? अगर वो रोज़ सही हो रहा होता, तो वो दिन-रात 24 घंटे यही करके अपना पैसा मल्टीप्लाई कर रहा होता, ना कि वीडियो बना रहा होता, राइट? सो आई थिंक इट इज़ जस्ट क्रैप। मैं कोर्स नहीं बेचता हूँ। आई हैव माय मेंटरशिप्स। पर अगेन, वो सिखाने के लिए, जिसको सीखना है अपने आप आएगा। मैं ज़्यादा मार्केटिंग भी नहीं करता हूँ उसकी, और ना मैं कोई बोलता हूँ कि मैं आपको इतना अमीर बना दूँगा, उतना अमीर बना दूँगा। अगर बनाना होता पहले मैं खुद बन जाता। दैट इज़ कंप्लीटली क्रैप। बट डोंट फॉल फॉर इट। आपको खुद समझ होनी चाहिए, और थोड़ा पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। इतना जल्दी फँसना नहीं चाहिए आपको। ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਲਟੀਰੀਅਰ ਮੋਟਿਵ ਸੋਚੋ। हुँ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਕਰੋੜ ਬਣਾ ਲਏ, 6 ਕਰੋੜ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ 250 ਜਾਂ 3000 ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਜੇ ਉਹ 5 ਕਰੋੜ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ 15 ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, 100 ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਵੇਚਣ 'ਚ? ਲਾਈਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂਟਰਸ ਲੱਭੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਰਸ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ऑनेस्टली मैं किसी तो सीखिया तो नहीं, खुद ही सीखिया जैसा मेरे से अब सेल्फ लर्निंग रही है। पर लकीली बोलते हैं ना, आप जर्नी में चलते रहो, आपको लोग मिलते रहते हैं। आप अकेले निकलते हो, साथ में लोग जुड़ जाते हैं। तो वैसे ही काफ़ी लोग चलते-चलते मिले और बहुत मतलब कभी सोचा अनएक्सपेक्टेडली मिले। और बड़े-बड़े लोग मिले, जिनको मतलब मैं जिनसे इंस्पायर होता था, वो मेरे को हेल्प करने लगे समहाउ। तो काफ़ी लोग बीच में मिले हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा स्पेशली बिकॉज़ ऑफ इंस्टाग्राम। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ, क्रिएट कंटेंट। अगर आप पैसा नहीं बना रहे कंटेंट से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फॉलोअर नहीं बढ़ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एटलीस्ट आपका नाम जा रहा है वहाँ तक, आपका काम जा रहा है वहाँ तक। आपने आज मुझे बुलाया, हम कनेक्ट हुए, 2 लोग मिले इंस्टाग्राम की वजह से। मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ पे इंस्टाग्राम की वजह से, राइट? हम कैसे कनेक्ट हुए हैं? तो वो काम वहाँ तक पहुँचता है। अगर आपका काम अच्छा है तो इंसान को ज़रूर डालना चाहिए। मैं तो रोज़ एक वीडियो डालता हूँ। मतलब इट इज़ लाइक हैक, स्पेशली फॉर यंगस्टर्स। क्या करना है यार? फ़ोन आपके पास है, ये फ़ोन है, सबके पास है। छोटा होगा, बड़ा होगा, है तो ज़रूरी ना, सबके पास फ़ोन है। उसको उठाओ, यूज़ करो, वीडियो बनाओ, डालो। सिंपल सी बात है। तो इसके थ्रू मैं बहुत लोगों से कनेक्ट हुआ हूँ। काफ़ी लोग मिले, मेंटर्स मिले और उन्होंने सिखाया है। अगेन एक तो अगेन मारवाड़ी हैं ज़्यादातर मेरे मेंटर्स कह लो या जिन लोगों से मैं कनेक्टेड रहता हूँ। बिकॉज़ मेरे को लगता है अगर वो लाइफ़ में इतना अच्छा कर रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो ख़ास बात है एंड आई वांट टू बी अराउंड दोज़ पीपल। मुझे उन लोगों के साथ ही रहना है जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये बच्चे-वच्चे जो आशिकी लगा रहे हैं, नशे कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, इससे कुछ बनना नहीं है। ज़िंदगी में एट द एंड मैटर करता है आपने हाथ से क्या बनाया है, बस। ये सब रह जाती है बातें यहीं पे। तो खा लो, पी लो, घूम लो, फिर लो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। करना होगा तो मैं कर लूँगा अपनी मर्ज़ी से, ऐसा नहीं है मैं नहीं करता एन्जॉय। बट आई लाइक टू स्टे अराउंड वेरी फोकस्ड पीपल, वेरी बोरिंग पीपल। तो मेरे सारे मेंटर ज़्यादातर ये मारवाड़ी, ये गुजराती हैं, पर इनसे मैं बहुत सीखा हूँ ज़िंदगी में। इन्होंने सिखाया है कि मतलब एक मेरे मेंटर जिनको मैं मानता हूँ, वो कहते हैं, "मालिक का नाम और अपना काम कभी मत छोड़ना।" चलते चलो, वो ज़िंदगी अपने आप आपको पे ऑफ करेगी। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ करना ही नहीं है और आपको बहुत बार डाउट होता है, बहुत बार बुरा लगता है, मुझे भी लगता है, रोज़ होता है कि यार सही जा रहे हैं कि नहीं, ये गलत हो गया, ये पूरा नहीं हो पाया। बट देन यू हैव टू टेल योरसेल्फ मालिक का नाम और अपना काम। ये जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाते रहो, रोज़ बढ़ाओ, मतलब इसमें लिमिट ही नहीं है ना। मालिक का नाम जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, अपना काम जितना बेहतर कर सकते हो करो। आपको इसको बढ़ाते जाना है। आई एम श्योर कोई भी परफेक्ट नहीं होगा, मैं तो नहीं हूँ। मतलब मन ललचाई जाता है। नहीं हम इतना टाइम देते भगवान को, नहीं अपने काम में इतना टाइम देते। उसको बढ़ाते रहेंगे, रोज़ उसमें बेटर होते रहेंगे, पहुँच जाएँगे जहाँ तक पहुँचना है। एंड दैट इज़ आई थिंक द बेस्ट एडवाइस आई हैव गॉट फ्रॉम एनीवन। बाकी तो लोगों को देखते हैं, झुनझुनवाला जी को बहुत सुना है, बहुत देखा है, बहुत पसंद है उनके कोट्स, उनके वर्ड्स ऑफ विज़डम, क्योंकि उनके बात करने का तरीका ही इतना कमाल था। ही वाज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। आई डोंट थिंक ऐसा बुल कभी हिंदुस्तान में पैदा हुआ था, ना होगा आगे झुनझुनवाला जी जैसा। क्योंकि द वेल्थ ही क्रिएटेड एंड आल्सो द वे ही लिव्ड हिज लाइफ। हाँ, हेल्दी तो नहीं थे वो, एंड दैट्स समथिंग आई वुड नॉट टेक फ्रॉम हिम। बट अदरवाइज़ उन्होंने बहुत फ्रीली, ईज़िली अपनी लाइफ निकाली और बहुत एन्जॉयबल तरीके से। जिसको बोलते हैं ना पीस, आप एन्जॉय करते हो जर्नी को। पैसा तो बहुत लोग बना लेते हैं, आधे लोग तो पैसा गँवा देते हैं वापस और दूसरे लोग उसको एन्जॉय नहीं कर पाते। तो वो उसका मैच कर पाना, बनाना भी, रखना भी और उसको एन्जॉय कर पाना, अलग ही आर्ट है। ऐसे बहुत लोगों से सीखा है। पर हाँ जी, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं स्पेशली ध्यान रखता हूँ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਟ ਕੋਡ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਚੀਟ ਕੋਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ 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 ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਐਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟੰਡੇਲਵਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਘਰੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਵਰਕ ਫॉर ਮਨੀ ਆਫਟਰ ਅ ਸਰਟਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਾਲ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਐਸੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਏਜ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਸੋਚਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਚੇਂਜ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਬੜੇ ਸੀਗੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ। पहला मेरी कमज़ोरी क्यों मैं कह रहा हूँ, बिकॉज़ आई डोंट थिंक एनीवन कैन बी स्ट्रांग विदाउट बिकमिंग वीक, राइट, जैसे बोलते हैं। तो वो मेरी वीकनेस जो थी वो मुझे तंग करती थी। वीकनेस क्या थी, ऐसा कोई मतलब कोई डिफेक्ट नहीं था, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं था मेरे में। बस ये था कि मैं बहुत शाय था, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था
और बहुत एवरेज था हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में बहुत एक्सेल नहीं करता था। और दूसरी बात शाय भी था, तो घबराता था, क्योंकि ना मैं किसी चीज़ में बहुत अच्छा हूँ, ऊपर से मैं स्टैंड ही नहीं कर पा रहा हूँ किसी के सामने, दिक्कत होती थी। हाइट में छोटा था, मोटा था, दिखता अच्छा नहीं था, बहुत अमीर नहीं थे हम। मतलब ऐसा कुछ भी मेरे में ख़ास नहीं था कि मैं कुछ दिखा पाऊँ। एंड स्कूल में, ट्यूशन में, जहाँ पे भी मैं बच्चों के साथ रहा था, तो वहाँ पे दिक्कत होती थी मेरे को। एंड घबराता था मैं लोगों से। स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, जान भी नहीं थी मेरे भरी, ऑल दैट स्टफ। तो मेरी खुद की कमज़ोरी मेरे को तंग करती थी, बट आई थिंक उसने ही मेरे को बनाया जो मैं हूँ, या जो भी मैं आगे बनूँगा। क्योंकि जब तक वो ना होता तब तक मैं चलते रहता वैसे ही। बट वो कहते हैं ना, इट हिट यू हार्ड, वेरी हार्ड। इट हिट मी एक्चुअली वेरी, वेरी हार्ड। एंड स्पेशली इन कोविड, जब भी मेरे को मौका मिला कि यार अब तो मौका है ना बॉस, अब तो स्कूल जाना ही नहीं है, अब इन लोगों से मिलना ही नहीं पड़ेगा, पाला ही नहीं पड़ेगा ना इन लोगों से, अब तो खुद पे काम कर ले। इट चेंज्ड माय लाइफ। बिकॉज़ आई स्टार्टेड वर्किंग 10 आवर्स, 12 आवर्स, 14 आवर्स अ डे, मतलब लिमिट ही नहीं, जैसे आपने बोला। इसी में मज़ा आता था, नशा हो गया ये। ਕੀ ਕਰ ਲਏ ਸੀ 10-12 ਘੰਟੇ? इस टाइम मैं चेस खेलता था। आई वाज़ अ चेस प्लेयर, एंड आई वाज़ प्लेइंग चेस ऑनलाइन। तो ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट्स में खेलता सीगा। आई यूज्ड टू मेक मनी एज़ वेल। मनी मतलब 10, 20, 30 रुपए, दैट्स ऑल। पर मोटिवेशन सीखी कि पैसा मिल रहा है। आई यूज्ड टू प्ले चेस फॉर 10 आवर्स अ डे। आई यूज्ड टू क्रिएट वीडियोज़। मैं 4 साल से कंटेंट बना रहा हूँ। मैं कम से कम 5 से 6 पेज बना के बंद भी कर चुका हूँ। और मैं 5 साल पहले मोटिवेशनल कंटेंट बनाया था, जो कि स्टूपिड था, बिकॉज़ 14 साल के बच्चे की बात मोटिवेशन में कोई क्यों सुनेगा? पर मैंने बनाया था। उसका मुझे नाम भी याद है, ग्रो विद केआरएस, कवराज सिंह। तो सपने शुरू से थे। काम करने में कभी कोई कमी नहीं थी, मेहनत करना शुरू से था। पर वही है कि हाँ, इतना कभी वो जुनून, वो आग अंदर से आई नहीं, वो कभी देखा नहीं ना कभी। कभी किसी को देखा ही नहीं ऐसे। ना अपने आस-पास देखा, ना ऐसा कोई मेंटर था, ना कोई इंस्पिरेशन था। वही ना एवरेज लाइफ थी। स्कूल में रह के, क्योंकि बच्चे भी बाकी एवरेज थे, सभी एवरेज थे। जिनके साथ रहोगे वैसे ही होगा। पर उसके बाद अगेन इंटरनेट चेंज्ड माय लाइफ। जब लोगों से इंटरनेट के थ्रू तो सबसे मिला, मेरे पास कोई नहीं था भाई। मेरे घर में सब नॉर्मल लोग मेरे जैसे ही हैं। मेरे दोस्त कोई ख़ास थे नहीं, ना कोई बड़ा भाई, ना कोई बड़ी बहन, ना कोई छोटा भाई, छोटी बहन, कोई नहीं। आई वाज़ अ सिंगल चाइल्ड, एवरीथिंग वाज़ मतलब जस्ट नॉर्मल, नॉर्मल लाइफ जिस तरह ਹੁੰਦੀ है। पर इंटरनेट पे जाके पता चला यार, लोग ਕੀ कर रहे ਨੇ, एंड इफ दे आर डूइंग इट, ਅਸੀਂ क्यों नहीं कर सकते? एंड सब कुछ मिल ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਪਰ जुनून होना चाहिए, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ रेडी होते हैं जब। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग। सो मेरी कमज़ोरी जो सी ना, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। आई वाज़ ऑलवेज़ कनेक्टेड विद सिੱਖੀ, बट नेवर वेरी स्ट्रांगली। मतलब देखो, ਨੋਰਮਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੀਏ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ वर्क alone on such a big mission without any higher power. You cannot. मैं अकेला हूँ और ऐसी चीज़ पे काम करता हूँ जो दुनिया जिसके अगेंस्ट है, या जो दुनिया जिसको पसंद नहीं करती है, बोरिंग काम करता हूँ। मैं एट द एंड बर्नआउट हो ही जाऊँगा ना। और इतना काम करता हूँ, तो कैसे वो सस्टेनेबल रहेगा? और ना मेरे पास कोई मोटिवेशन है, ना मेरे को एन्जॉयमेंट है, एक्साइटमेंट है। उसका एक ही ज़रिया है, हायर पावर। और सबसे हेल्दीएस्ट फॉर्म ऑफ मोटिवेशन है वो। क्योंकि वो तो आपको कोई दिक्कत नहीं दे रही। आप, कई लोग बोलते हैं कि हम जी 6 घंटे काम करके बियर पिएँगे जाके, उनको एक्साइटमेंट मिल जाएगी, या उससे रिचार्ज हो जाएँगे। पर अगर आप गुरु के नाम से रिचार्ज हो जाए, या मेडिटेशन से हो जाए, फिटनेस से हो जाए, कोई भी अच्छी चीज़ से रिचार्ज हो जाए, आई ऑलवेज़ से इफ योर ब्रेक इज़ आल्सो हेल्दी, यू आर बाउंड टू बी सक्सेसफुल। अगर आपका ब्रेक भी हेल्दी है, तो आप कहीं पे गलत जा ही नहीं रहे ना। ब्रेक टाइम में भी आप अच्छे काम कर रहे हैं। दैट चेंज्ड माय गेम, कंप्लीटली चेंज्ड माय गेम। मैं जिस तरह ਦੱਸਿਆ कि ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਗੇਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ में। मैं कीर्तन सुनना शुरू ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲਗਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣ ਕੇ। एंड देन आई वाज़ मच मोर इन कंट्रोल। काम स्मूथ होते गया, स्टेबल होते गया। समझ आने लगी ज़िंदगी कि हाँ यार, ठीक रास्ते पे हैं, हम चलते जाएँगे। मतलब बच्चा था ना एट द एंड, छोटा था, तो कभी-कभी मन आ जाता था। बट दिस हेल्प्ड मी अ लॉट। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਕਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ 4-5 ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ 2-3 ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਏ, ਚੈਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਕਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਥਿੰਗ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਨੇ? ओके। पहला मैं शुरुआत किस तरह की थी? शुरुआत अगेन चेस तो हुई सी। चेस वाज़ माय फर्स्ट लव। मैं चेस प्लेयर सी। बचपन तो चेस खेड रहा हूँ। दूजी
क्लास तो सेकंड क्लास तो जैसे कहते हैं, बट आई वाज नेवर वेरी गुड एट इट। ऐसा नहीं कि मैं कोई ग्रैंड मास्टर सीगा। 10वीं क्लास तक 8 साल निकल गए बस मस्ती ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਯੈਸ ਆਈ ਵਾਸ ਡੀਸੈਂਟਲੀ ਗੁੱਡ ਐਟ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ। ਬਟ 10th ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਖੇਡਣਾ। 10 ਘੰਟੇ ਖੇਡੋਗੇ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋਗੇ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਇਟ ਚੇਂਜ। ਸੋ ਬੜਾ ਗੇਮ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ। ਉਹੀ ਅਗੇਨ 8 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਪਾਇਲ ਅਪ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਬਲੂ ਅਪ, ਮਾਈ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਅ ਲੋਟ ਫॉर दैट टाइम। ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਆਲਸੋ ਪਲੇਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇਨ 2022 ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਖੇਡਣ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਖੇਡਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਮੇਡ ਮਨੀ ਥਰੂ ਦੈਟ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ 10 20 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ, ਜੈਸੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖੇਲੋ, ਜਿੱਤੋਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, MPL ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਪ ਹੈਗਾ MPL, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੈਸ ਦੀ ਗੇਮ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਂਡ ਫॉर एवरी ਵੈਨ ਯੂ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਗੈਟ 3 ਰੁਪੀਸ, 3 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 3-3 ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਐਂਡ 3-3 ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਮੇਕ ਮੋਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ। ਐਂਡ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਲਸੋ ਸਮ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਫॉर ਆਲ ਦ ਵਿਊਅਰਸ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਗਰੋ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਅਮਾਊਂਟਸ ਵੱਧ ਗਏ, ਤੇ ਪੀਪਲ ਸਟਾਰਟਡ ਕਨੈक्टिंग विद मी फॉर ट्रेनिंग। उनको पता नहीं था कि मैं खुद 14 साल का बच्चा हूँ। उनको लगा कि इसकी गेम अच्छी है, तो सर आप सिखाते भी हो? मैंने कहा जी सिखा देंगे जी। तो अगेन पैसा बनाना था, तो आता नहीं था सिखाना, पर थोड़ा बहुत तो बता ही देंगे गेम क्या होती है। ਤੇ ਲੀਡਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? अगेन इंटरनेट ऑनलाइन टूर्नामेंट्स होते थे, टूर्नामेंट में मेरे जैसे 100 लोग खेल रहे हैं, अगर मैं फर्स्ट आ रहा हूँ तो बंदा देखेगा कि यार फर्स्ट कौन आ रहा है, तो वो पूछेगा, मैसेज करेगा। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एक बच्चा आया था मेरे पास, सिर्फ मैंने सिर्फ एक बच्चा, इससे मैं सिर्फ पर क्लास 250 रुपये लेता था महीने में। मेरे पास उसके 2500 रुपये की फीस हर महीने आती थी, बट दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। महीने का 2500 कमा रहा हूँ मैं, 14 साल का बच्चा, बहुत बढ़िया है। 4-5 महीने किया, दूसरा बच्चा आ गया, हांगकॉन्ग का बच्चा आया, उससे महीने की 3000 फीस आने लगी, 5,500 अमाउंट हो गया। ऐसे करके अमाउंट्स बढ़ते गए। फिर आई थॉट कि व्हाई नॉट ट्रेन किड्स, अपने आप को बेटर करूँ इसी में, थोड़ा और प्रोफेशनल हो जाऊँ और बच्चों को पढ़ाऊँ क्यों ना। बस दिक्कत ये थी कि मैं खुद ही बच्चा था, एज का थोड़ी दिक्कत थी, बट अदरवाइज थोड़ी नॉलेज तो थी। जैसे टाइम लगता गया जी, थोड़ा बड़ा होता गया मैं भी, थोड़ा और मैच्योरिटी आई थी, पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग विद मी, आई स्टार्टेड मार्केटिंग इट, एंड नाउ आई ट्रेन लॉट ऑफ किड्स। मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। बाज़ार के बाद 3:30 बजे के बाद, लंच करने के बाद 4 बजे से लेकर 8 बजे मैं रोज़ बच्चों को पढ़ाता हूँ। बच्चे घर भी आते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। बहुत एंजॉय करता हूँ मैं गेम को। इस गेम में बहुत कुछ दिया है मेरे को स्पोर्ट ने, चाहे मैं ग्रैंड मास्टर नहीं बन पाया, चाहे मैं वर्ल्ड नंबर 1 या कोई नहीं हूँ, पर इनडायरेक्टली मुझे स्पोर्ट ने बहुत दिया है, और आई थिंक यही स्पोर्ट की खासियत है। मतलब एक ना एक स्पोर्ट तो ज़रूर खेलना चाहिए। एक तो जो सिखाया वो तो सिखाया ही मेरे को इतना कुछ, पेशेंस जो आज है या कोई डिसिप्लिन है, वो सब इसी की वजह से है। चेस गेम ही ऐसा है, माइंड गेम। प्लस इनिशियल बूस्ट भी उसी ने दिया, पैसे का बूस्ट भी, आइडेंटिटी बूस्ट भी। लोग जाने मुझे कैसे, चेस की वजह से कि ये बच्चा अच्छा है, चेस प्लेयर है। कुछ तो था ना मेरे पास, एक स्किल, उससे फिर चीज़ें लूप में बनती रहती, चलती रहती हैं। दैट इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। आई स्टार्टेड ट्रेनिंग किड्स एंड स्टफ। बट अगेन अगर आप अभी पूछो, ਤੇ ਹੁਣ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਸੋਰਸ। ਸਮ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਆਈ ਡੂ, ਦੈਟ ਫੀਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਸੋਰਸ। ਦੈਨ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪਸ ਆਈ ਡੂ, that is one source. Chess training is one source. That's all I think. Just playing if I do sometimes, that is one source. ਤੇ chess playing ਤੇ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ। ਤੇ these are some sources. सून कंटेंट वैसे तरह इंस्टाग्राम ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ऑफिशियली नहीं पे करता है इंडिया ਵਿੱਚ, करेगा तो वो भी सोर्स बच जाएगा। बट these are my sources and आई एम नॉट ट्राइंग टू एक्सपैंड them anymore, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी भी कितनी है ना इंसान में, टाइम भी कितना है, बड़ा स्कैटर्ड हो जाता है। आई एम वेरी फोकस्ड ऑन दीज थिंग्स। मेरे रोज़ का यही गोल होता है, ये जो चीज़ें कर रहा हूँ यही करते जाऊँ, थोड़ा थोड़ा बेटर होते जाऊँ, बस आई एम वेरी हैप्पी विद दिस, वेरी वेरी हैप्पी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਲਈ? मैक्सिमम करीबन 1 घंटे का 2,500 रुपये। 1 ਘੰਟੇ ਦਾ 25000? हाँ जी। 40 मिनट का 2,500, 40 मिनट की क्लास होती है, 2,500-3,000 रुपये मैक्सिमम ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ? एट अ टाइम। करीबन समझ लो 8-9 बच्चे, कोई ग्रुप क्लास हुई था, पर अदरवाइज मैं ज़्यादातर पर्सनली बच्चों को ट्रेन करता वन ऑन वन। जो मेरे को करीबन होंगे 24-25 बच्चे। तो दिक्कत यही है कि अद्धा टाइम मार्केट में जाता है, सो आई जस्ट हैव 3 स्लॉट्स अ डे एंड हैव टू एक्यूमुलेट 25 बच्चे इन दोज 3 स्लॉट्स। हफ्ते में 2 तो सारियां दी क्लासां होंदियां ने, सो इट गेट्स अ बिट टफ, बट मज़ा आता है, मेरे को अच्छा लगता है बच्चों से, और कनेक्शन बन गया है। बच्चे वही पुराने वाले हैं, सीख रहे हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी आगे साथ में बढ़ रहा हूँ, तो अच्छा लगता है बहुत,
क्योंकि स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ मैं। ऐसा नहीं चाहता हूँ मैं कि स्पोर्ट्स से अलग हो जाऊँ, क्योंकि मैं खेलना छोड़ दिया, आपको बताया जैसे मैंने। मैं प्रोफेशनली कंटिन्यू नहीं कर पाया, पर मेरा दिल तो वहीं है, प्यार तो वही है शुरू से। तो मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहता हूँ, मेरा सबसे बड़ा लाइफ़ का गिल्ट होगा अगर मैं छोड़ दूँगा तो। मैं जी नहीं पाऊँगा उसके बिना, बहुत रिग्रेट होगा मेरे को। इसलिए मैं चाहे जितना अमीर भी अगर बहुत हुआ हूँ, भगवान के पास अगर पहुँच जाऊँ आज, फिर भी मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाना शायद नहीं छोड़ूँगा, क्योंकि मेरा फिर चेस से छूट जाऊँगा मैं। So I want to always continue playing chess or basically any sport, and that is why I'm now into running as well. बहुत मज़ा आता है स्पोर्ट खेल के और जुड़े रह के ना, इसकी इसकी फीलिंग, इसका हाई अलग ही है। कोई पैसा, कोई चीज़ मैच ही नहीं कर सकती इसको। जो कि मेहनत करने का वो है ना, एक इश्क है, आप वो अलग नशा देता है। तो वो मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता ऑनेस्टली। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚੈਸ ਖੇਡੇ, ਚੈਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਸੇ ਵਧੀਆ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਆਈ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ 2020 ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਗੇਨ ਬੜੀ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਸਟੇਜ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ। ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਸੀ, ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਨਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਲਕੀਲੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਅਰਨਿੰਗ ਗੁੱਡ ਸੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਦੇ ਨਿਊ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਮਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਰੋਇੰਗ ਨਾ। तो दैट वाज़ व्हाट वाज़ गोइंग ऑन इन 12th तक। फिर क्योंकि 9th से 12th 3-4 साल देते थे, काफ़ी अमाउंट्स ठीक-ठाक हो गए, रिजल्ट्स आ गए, मैं थोड़ा सीबी सर्टिफाइड भी सीगा, एक तो मैं एग्ज़ाम भी क्लियर कीते, काफ़ी फॉलोअर भी हो गए सी, सब कुछ हो गया ठीक-ठाक, ते मन गए, पर मुश्किल हुई सी नो डाउट, क्योंकि लगता ही है कि बड़ा रिस्क है। पर अगेन आई ऑलवेज़ से कि यार अगर आपको मतलब पता है कि आप क्या कर रहे हो, इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग देन इट इज़ नॉट अ रिस्क, है ना? तो सिस्टमैटिकली आपने चलना है। कैलकुलेटेड रिस्क जिसको कहते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ उल्टा भी पड़ गया, तो मैं वर्स्ट के लिए प्लान था कि मेरे पास चेस एक स्किल है, मेरे को रोटी तो मिल ही जाएगी, बच्चों को पढ़ा लूँगा, या बेसिक नॉलेज तो ज़िंदगी की है ही ना, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरे लिए वर्कआउट कर गया, सबके लिए नहीं करता है, हर सबकी ज़िंदगी अलग-अलग होती है, सबकी सिचुएशन अलग होती है, सो इट्स नॉट लाइक यू डोंट गो टू कॉलेज, प्लीज़ गो टू अ कॉलेज। पर वही है कि स्पेसिफिक नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट ट्रेडिशनल। स्पेसिफिक नॉलेज के पैसे मिलते हैं आजकल की दुनिया में, ट्रेडिशनल का ज़माना गया, अब वो गया, वो 50 साल पहले बीवी है, वही चीज़ें पढ़ रहे हो आप। उससे आप अमीर नहीं हो सकते, बड़े आदमी नहीं बन सकते, कुछ तो आप में अलग होना चाहिए। अब वो आप कॉलेज के साथ बिल्ड कर लो तो अच्छा है, नहीं तो जैसे मैं छोड़ के गया तो अलग बात है। ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਕ ਜੈਕ ਆਫ ਆਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਕਿੱਲ ਆ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸੇਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚੈਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ? ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ? ਵਾਈ ਨਾਟ ਚੈਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੀਡਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੀਡਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ क्यों? पहला अकाउंट मैंने चेस का ही सीखा, अगेन KRS चेस, फिर ग्रो विद KRS मोटिवेशनल, ऐसा आप बड़े अकाउंट रहे ने। पर चेस के अकाउंट 1000-1100 फॉलोअर बने, छड्डता बंद करता, क्योंकि अगेन मैं बड़ा छोटा सी उस टाइम, ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोफेशनल नहीं सी, तो लीड्स नहीं आंदियां सी। ते चेस वाज अ स्मॉलर स्पेस, राइट? चेस जस्ट अ पर्टिकुलर स्पोर्ट, स्मॉलर स्पेस। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज सेल्फ इंप्रूवमेंट। अभी एक पेज में आप देखो, इन्वेस्टिंग की भी नॉलेज है, रनिंग भी रोज़ करता हूँ, चेस की भी अगर मार्केटिंग करनी हो तो कर देता हूँ, लाइफ के बारे में भी बताता हूँ। इट इज़ ऑल अबाउट मी एंड ऑल अबाउट ग्रोथ इन जनरल। तो अगेन आपका जितनी स्पेस बड़ी होगी, जैसे हमने इन्वेस्टिंग में समझा कि इंडस्ट्री बड़ी होगी, वैसे ये मेरी खुद की मतलब एक स्पेस मेरे लिए बड़ी है, तो मेरी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वहाँ पे लिमिटेड थी, इसलिए मैंने बंद करके यहाँ पे आया। बट वो पेज था मेरा पहले, और अभी भी मेरे दिमाग में है कि आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे दिमाग से चलता रहता है रोज़, कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं तो मैं खोलूँगा, बनाऊँगा, वर्क करूँगा, उस पे चल रहा है वर्क, पर कहीं टाइम भी नहीं मिल पाता, थोड़ा वो हो जाता है। बट फॉर नाउ दिस इज़ द पेज, क्योंकि अगेन अपॉर्चुनिटी साइज़ इज़ बिग। ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਆਡੀਅנס ਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਤੇ 3,83,000 ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੇ ਹਲੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਨੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਰਕਆਊਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੈਲਥ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਰੋਡਰ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਫੋਲੋ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਆਏਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਬਲਡ ਕੀਤਾ ਹਲੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਵੀ NISM ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਵੀ ਹੋ, ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ NISM ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स है, करेक्ट? नेशनल इंस्टीट्यूट सिक्योरिटीज मार्केट है, दिस इज अ बॉडी अंडर सेबी। सेबी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर ये एक बॉडी है उनकी ओन्ड। तो एजुकेशनल एक एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली। अगर आप इन्वेस्टर बन रहे हो तो आप इधर से सर्टिफाई हो सकते हो कि मेरे पास एक सर्टिफिकेशन है,
बहुत ईज़ी है करना। मतलब पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट इट इज़ वेरी एक्सेसिबल एंड वेरी लो कॉस्ट। करीबन 1500 रुपए के इसके एग्ज़ाम होते हैं। ऑनलाइन आप रजिस्टर कर सकते हो और जो भी आपके शहर में सेंटर होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंटर होता है ना, बीएसई सेंटर या बीएसई ऑफ़िस, उधर जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगेन आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई आसान नहीं है, स्पेशली जो मार्केट में नया है या जो डायरेक्टली एग्ज़ाम देने के बाद मार्केट में आएगा, उसके लिए तो पढ़ाई बिल्कुल आसान नहीं होगी। पर उसके लिए फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई बंदा पढ़ के मार्केट में आए, तो उसका मार्केट का काम आसान हो जाएगा। क्योंकि मार्केट में आप आओगे, आपको सब कुछ पहले से पता होगा ज़्यादा सारी चीज़ें। बिकॉज़ इट इज़ कंप्लीटली ऑर्गनाइज़्ड। इसमें करीबन 28-30 अलग मॉड्यूल्स हैं और मार्केट की हर सेगमेंट पे एग्ज़ाम बने हुए हैं। अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो, करेंसी डेरिवेटिव एग्ज़ाम है। अगर आप कमोडिटी ट्रेड करते हो, कमोडिटी डेरिवेटिव एग्ज़ाम है। अगर आप फंडामेंटल समझना चाहते हो, रिसर्च एनालिस्ट जैसे मैं हूँ, वैसा एग्ज़ाम है। अलग-अलग एग्ज़ाम्स हैं और 1500-2000 रुपए की एग्ज़ाम है। आपको सर्टिफ़िकेशन भी मिल रही है, इतनी ब्रह्मांड की नॉलेज भी मिल रही है और क्या चाहिए? और ठप्पा है, एनआईएसएम का, सीबी का ऑफ़िशियल। द मटीरियल इज़ गुड, यू लर्न अ लॉट एंड एट लो कॉस्ट और आप इतना एक्सेसिबल। तो बहुत बढ़िया है और अगर आप इन्वेस्टिंग करने से पहले या इनफैक्ट शुरुआत करते साइड बाय साइड कर लो, तो कमाल है क्योंकि आपको नॉलेज बहुत मिलेगी। मोर देन द टाइटल इट इज़ फॉर योर ओन इन्वेस्टिंग। जर्नी में बहुत हेल्प करेगा। मैंने बहुत लेट किया ऑनेस्टली, मेरे को पता ही नहीं थी ये सब चीज़ें, पर हाँ, हेल्प किया उसने और मेरे को टाइटल से भी फिर ऑफ कोर्स लोग जानते हैं कि एक ऑथेंटिसिटी बिल्ड होती है कि हाँ जी, इसने पढ़ के किया है तो उसको कुछ तो आता ही होगा ना, तभी एग्ज़ाम क्लियर किया। बिल्ड्स ऑथेंटिसिटी। ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਗ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਆ। हाँ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਨੌਲੇਜ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ NISM ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ। बिल्कुल। ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ स्टडी मटीरियल ऑनलाइन आ ਜਾਂਦਾ, ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੀਡੀਐਫ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਲੈਣੀ 300-400 ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ, ਬਟ यू विल गेट इट थ्रू अमेज़न एज़ वेल, NISM। अलग-अलग अगेन मॉड्यूल्स के अलग-अलग बुक्स हैं, बट एज़ यू सेड राइटली कि नॉलेज में बहुत है, काफ़ी सर्टिफिकेशंस ना दिखाने बाज़ी के लिए होती हैं। ये भी दिखाने के लिए लोग लेते हैं, पर दिखाने के लिए भी तो पहले पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि इसमें 200-300 पेज की बुक्स हैं। रिसर्च एनालिस्ट वाली तो मेरे को बहुत मुश्किल हुई थी करने में, क्योंकि उसमें बहुत डीप फंडामेंटल्स के लॉजिक्स थे, डीप अकाउंटिंग की चीज़ें थी और मैं छोटा था, इतनी समझ थी नहीं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इफ आई वर टू टेल यू, आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट टू क्लियर दैट एग्ज़ाम, क्योंकि ये एग्ज़ाम मोस्टली 12th पास या इनफैक्ट ग्रेजुएट्स से पहले होता ही नहीं। और इसमें पैन कार्ड माँगते हैं। तो मैं जब 17 का था, मेरे पास पैन कार्ड था ही नहीं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने कहा मेरे को तो यंगेस्ट बनना है, मतलब किसी ने नहीं दिया होगा 17 में, तो इसका मतलब तो मुझे देना है। वो कहते जी आप दे नहीं सकते। तो मैंने माइनर पैन कार्ड बनवाया और मैंने 18 ऑन से पहले एग्ज़ाम दिया। ऐसे ही अपने लिए एक मोटिवेशन था कि जी मैं 17 में दूँगा। बट येस, मैंने 2 एग्ज़ाम दिए और उसके बाद थर्ड वाला भी दिया 6 मंथ्स लेटर ऑन। बट काफ़ी नॉलेज मिली और ऑथेंटिसिटी भी बिल्ड हुई। मस्ट गिव फॉर एनीवन हू इज़ इन्वेस्टिंग। बहुत अच्छा चीज़। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਬੀ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਟਿਲ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਉਹ ਸੋਚਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਉਹ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਰਸ ਸਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਕॉज़ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੋਗੇ? मतलब बोलना है ना ऐशर ले लो, वो बोल देगा। तुसी क्यों ले रहे हो? Why are you buying a particular stock? Again, it is not a stock, it is a business, it is a company. स्टॉक खरीदना लोग मजाक समझते हैं, गेम है, बटन खरीद लिया, बेच दिया, हो गया, क्या मजाक है? पर आपका हार्ड एंड मनी, आपका खुद का पैसा है, आप क्यों किसी कंपनी में लगा रहे हैं जब तक आपको उसकी समझ ही नहीं है? कल को वो गिर गई, क्या करोगे? किसको पकड़ोगे? एक बहुत एक अच्छी लाइन है कि एक ना एक पैसेज है, द जॉयज़ ऑफ कंपाउंडिंग बुक, अगर आपने पढ़ी, उसमें से मैंने पैसेज पढ़ा था। तो वो कहते हैं हमेशा उसमें कि लोग ना बहुत पॉज़िटिव चीज़ें तो देखते हैं या हमेशा बड़ी चीज़ें, फ्लैशी चीज़ें देखते हैं, डाउनसाइड नहीं देखते हैं। तो जैसे कहते हैं उसमें कि अपसाइड पोटेंशियल इज़ ओवररेटेड, बट डाउनसाइड प्रोटेक्शन इज़ अंडररेटेड। तो लोगों को लगता है अरे यार ये स्टॉक डबल हो रहा है, ले लो। किसी ने ये नहीं सोचा कि उसमें रिस्क कितना है। ऑलवेज़ लुक एट योर रिस्क फर्स्ट देन योर रिवॉर्ड, कहते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद समझदार हो। वो तो गलत ही काम कर रहे हैं, तो कुछ अलाउड ही नहीं है करना। इसीलिए मैं भी, आप देखोगे, कभी स्टॉक का नाम नहीं लेता हूँ। मैं प्रेफ़र करता हूँ कि कम ही बोलूँ इन टॉपिक्स पे बात, क्योंकि आपके पास ऑडियंस है। आप ना चाह के भी मैनिपुलेट अगर कर दो या कुछ गलत हो जाए, किसी का कुछ गलत एडवाइस चली जाए, तो क्या फ़ायदा? सो इट इज़ कंप्लीटली रॉन्ग। सेबी वैसे स्ट्रिक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा अब, और मैं देख रहा हूँ काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को तो पनिश भी हो रहे हैं काफ़ी। तो धीरे-धीरे स्ट्रिक्टनेस आएगी, बट स्टिल आप सबको नहीं रोक सकते हो। एक फ्री प्लेटफ़ॉर्म है, लोग बोलेंगे एट द एंड तो। खुद ही आपको समझदार होना है। ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਆ, ਲਾਈਕ 2025 ਦਾ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿੰਗ? ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰ ਮੰਥ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂ? देखो अभी जी, पर मंथ पे जो ट्रेनिंग है,
ਜਾਂ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਨ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਨ तो इन्वेस्टिंग थ्रू ही है, बट इन्वेस्टिंग में आमदनी नहीं, अगेन इनकम नहीं आती, वो तो वेल्थ क्रिएशन है, उधर से मैं निकालता नहीं हूँ। अगेन इधर से जितना भी मैं कमा रहा हूँ मैं डालते रहता हूँ। 90 to 95% ऑफ माई इनकम डायरेक्टली गोज इन टू SIPs, ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिक है। अगेन मैं लकी हूँ, मैं एक तरह से कहूँगा कि तो मैं 19 साल का हूँ तो मेरे सिर पे खर्चे नहीं हैं, और मैंने खर्चे डाले भी नहीं फालतू के। पहली बात तो मैं माँ बाप के घर में रह रहा हूँ तो मुझे रोटी कपड़ा मकान तो चलाना नहीं। दूसरी बात, जो शौक है वो मैंने खुद ही मार ली, क्योंकि मेरे को पता है कि जी मेरा अभी टाइम है काम करने का, तो मैंने शौक भी नहीं पाले। दोनों चीज़ों से मैं बच गया, ना बेसिक नेसेसिटीज से और शौक से भी, वरना दोनों में से एक ना एक में तो बंदा फंसता ही है ना। कोई मजबूर होता है तो कोई बेचारा पाल लेता है शौक, मैंने दोनों से बच गया। तो वट एवर आई अर्न, इवन इफ आई अर्न वेरी स्मॉल अमाउंट्स, इट अमाउंट्स इनटू वेरी बिग। क्योंकि आप समझो, अगर कोई बंदा 10 लाख महीना भी कमा रहा है, बहुत लोग मैंने देखे हैं 5 लाख 10 लाख की सैलरी पे महीने महीने की रोते रहते हैं बैठ के, बहुत लोग देखे हैं। 10 लाख कमा रहे तो 8 लाख के खर्चे भी तो हैं, उसके पास बचता क्या है? वो 2 लाख आता भी है, उसकी वो टाइम में प्लानिंग ही नहीं हो पाती है। वो महँगाई इतनी बढ़ती रहती है, वो बोलता है अरे महँगाई बढ़ गई, महँगाई बढ़ गई। महँगाई इसलिए बढ़ गई दोस्त, तेरे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर मैं, जैसे मैंने बताया, मैं तो बहुत एकदम छोटे से आया हूँ, 10-10 रुपए की मैंने कमाई देखी है। तो मेरे लिए जो भी मैं XYZ अमाउंट कर रहा हूँ, आई एम सैटिस्फाइड। ऑफ कोर्स आई वांट टू ग्रो, बट जो भी मैं ग्रो करता हूँ, अगेन मेरा लॉजिक सिंपल है, मैं महीने का जितना भी कमाऊँ, मैं 10,000 रुपए भी कमाऊँगा ना, मेरे लिए विन-विन है, क्योंकि मेरे तो सारे के सारे पैसे जाने हैं इन्वेस्टिंग में। इट इज़ अबाउट हाउ मच आर यू सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। बात सिंपल है ना। आप 1 करोड़ महीना कमा रहे हो, आपके खर्चे अगर 1 करोड़ 10 लाख है, मेरे को क्या मतलब भाई? आप अमीर थोड़ी ना हो। अमीर इज़ द वन जो बचा के घर पे ला पा रहा है, राइट? तो इसीलिए मैं बड़े नंबर्स पे फ़ोकस नहीं करता, मेरे को है भी जोड़ कितना पा रहा, और मैं ठीक-ठाक जोड़ पा रहा हूँ, आई एम हैप्पी। ऑफ कोर्स मैं ग्रो करूँगा, मेरा मेन गोल यही है, ग्रो करके इसको इन्वेस्टिंग में डालते रहूँ। प्लस मैं अब थोड़े पर्टिकुलर बड़े बेट्स लूँ इस साल, और थोड़े एलोकेशंस बढ़ाऊँ, ऑफ कोर्स, है ना? एंड द आइडिया इज़ सिंपल, टू स्टे कंसिस्टेंट, टू स्टे रेगुलर विद इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज़ मैं अच्छे रोड मैप पे हूँ, उस पे चलते रहना है, बिकॉज़ अभी वो टाइम लगता है पे ऑफ करने में। तो अभी मैं कुछ निकालना नहीं चाहता, कुछ मैं ऐसे प्रॉफिट वाइज़ नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मैं इसको बहुत लॉन्ग गेम सोच रहा हूँ। मैं बस डालते रहूँ, डालते रहूँ। जब तक मैं मरता नहीं हूँ, मेरे को ऐसे ही बंद नहीं करने हैं, सिंपल मेरा लॉजिक है, चलते रहने दो। बाकी मेरे और बहुत गोल्स हैं इन्वेस्टिंग के अलावा इस साल, बहुत ज़्यादा। ये जो इन्वेस्टिंग से थोड़े परे हैं, एक रनिंग मेरी लाइफ में एक नई चीज़ आ गई है, तो उसमें मेरे को है कि इस साल होपफुली आई रन अ फुल मैराथन, 42 किलोमीटर। अगर मैं दौड़ पाया तो आई होप सो। अभी काफ़ी टाइम है, 10 महीने साल के हैं, प्रिपरेशन चालू है। अगर दौड़ पाए तो वो दौड़ेंगे, और बॉडी बनानी है अच्छी, और मतलब दौड़ना है, मतलब आई हैव टू रन फॉर माई सेल्फ। ऐसा कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है, ना मैं उससे पैसे कमाता हूँ ना कुछ है, पर दौड़ना है बस। वो दौड़ने से जो मेरी ज़िंदगी बदली है वो मैं आपको बता नहीं सकता, तो वो करना है। दैट इज़ वन बिग गोल अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਨਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਯੂ ਆਰ 28 ਜਾਂ 29, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਏਜ ਆ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਟ ਫॉर ਲਾਈਫ। हाँ जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਲਾਈਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਟ ਫॉर ਲਾਈਫ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਸ 23, 22, 23, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆਈ ਸੀ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ 14, ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਆ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਬਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਗ ਗਿਆ ਬਿਫੋਰ 30 ਆਈ ਗੈਸ, ਹਲਾ ਇਨ ਯੂਰ 20 ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਜਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਈਫ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ 100%। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਪਾਥ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਜੋਬ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟਾ ਸੋਚੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਲੇਆਊਟ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਉਲਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋਬ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੀ, ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਬੈਡ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਡਰੀਮ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈਫ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਡਰੀਮਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਊਗਾ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੋਊਗਾ ਚਾਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? मतलब आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर एज़ वेल। ये जो आपने बोला ना कि मतलब वेल्थ शुड हैव अ पर्पस, ये बहुत सही बात है। मैंने किसी रिसेंटली बुक में पढ़ी थी, बिकॉज़ यही गलती पैसे की, समझदारी की थोड़ी ना होती है, साइकोलॉजी है सारी। समझदार तो बहुत लोग हैं, और इसी पे आई वुड लाइक टू ऐड अ लाइन, मैंने एक लाइन पढ़ी थी, कहते हैं कि द वन्स हू आर वेरी स्मार्ट
the ones who are passing out from the top universities, and they've studied so hard for that one job, their dream job. They don't even know what to do with that first salary. जिस जॉब के लिए, जिस पढ़ाई के लिए उन्होंने 10-10 साल मेहनत करी, यूनिवर्सिटी भी क्लियर आउट हो गई, ड्रीम जॉब भी उनको मिल गई। दे डोंट इवन नो व्हाट टू डू विद देयर फर्स्ट सैलरी। उसका फ़ायदा क्या जॉब का? फ़ायदा क्या पढ़ाई का? बिकॉज़ देन अगेन दे आर लॉस्ट। मिल गया सब कुछ, ड्रीम जॉब मिल गई, ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल गई, पैसे भी आ गए। करना क्या पैसे, संभालना कैसे है पैसे, वो नहीं आते। एंड दैट इज़ व्हाई वी से इट इज़ नॉट अबाउट द ब्रेन्स, इट इज़ अबाउट द टेम्परामेंट। आप कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हो, बिहेव करते हो लाइफ में, बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टिंग में भी, लाइफ में भी, किसी भी चीज़ में। स्मार्टनेस में, टैलेंट में, ये सब चीज़ें मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मेरे में बहुत कम टैलेंट है, मैं सच बताऊँ, कुछ नहीं आता मेरे को, बहुत लोगों से मुताबिक। मुझे टेक्निकलिटीज़ नहीं आती हैं मार्केट की। पीपल नो लॉट मोर अबाउट देन मी, बिकॉज़ आई एम जस्ट 19। मेरे पास ना कोई फॉर्मल एजुकेशन भी है, कुछ नहीं है, तो मेरे को बहुत चीज़ें समझ नहीं आती हैं। कितनी चीज़ें होती हैं बाज़ार में, है ना? शेयर प्राइस तो चलो ऊपर-नीचे अलग चीज़ है, कंपनी भी समझ ली अलग चीज़ है, और बहुत चीज़ें हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, कितने ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं, कितने सारे ग्लोबली आपको क्रूड ऑयल है, कितना कुछ है जो अफेक्ट करता है मार्केट। पॉलिटिक्स बहुत इफेक्ट बहुत है, करती है। इसकी मेरे को समझ थोड़ी ना है। मेरे को बिल्कुल समझ नहीं है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। बट स्टिल पीपल ट्रस्ट मी विद देयर मनी, और आई नेवर टू ट्रस्ट माई सेल्फ विद माई मनी, जस्ट बिकॉज़ आई एम एबल टू बिहेव वेल। मनी डज़ नॉट कम टू द वन हू इज़ वेरी स्मार्ट, कम्स टू द वन हू बिहेव्स वेल। एंड बिहेवियर इज़ वेरी हार्ड टू टीच टू इवन वेरी स्मार्ट पीपल। मेरा फेवरेट कोट है। बहुत समझदार इंसान होगा ना, उसको बिहेवियर समझाना और मुश्किल होगा। वो समझेगा भाई मैं तो बहुत समझदार हूँ, मैं तो टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मैं तो जीत गया। कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, मैं तो यूनिवर्सिटी से पढ़ा ही नहीं, सही में बैठा हूँ यहाँ पे। सिंपल लॉजिक है, क्योंकि आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। सो द ओनली थिंग इज़, जैसे आपने बोला कि बल्ब जगता है, वो तो गुरु महाराज की कृपा है, जैसा बल्ब जग जाए पहला। मेरा जग गया, आई एम वेरी ग्रेटफुल। पर आपके हाथ में जो है अपने आप को कंट्रोल में रखना, मेरा रियली सच बताऊँ एक ही पर्पस है, आई जस्ट डू नॉट वांट टू स्क्यू अप। मैंने आपको पहले भी बोला, वॉरेन बफे जैसे 11 से 90 तक उन्होंने कुछ नहीं किया ख़ास। उन्होंने बस कंसिस्टेंटली एक ही काम किया, शांति से। गलती नहीं करी बस, बड़ी गलतियाँ नहीं करनी, छोटी-मोटी चलती हैं। अगेन आई वुड लाइक टू से अ कोट, मेरे को बड़ा मज़ा आता है, मैं उससे समझाता हूँ। झुनझुनवाला जी का है कि डोंट बी अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक, बट ओनली मेक व्हाट यू कैन अफोर्ड, सो दैट यू मे लिव टू मेक अनदर। तो गलतियाँ करने में कोई हर्ज नहीं, पर इतनी बड़ी गलती मत कर बैठो जो दिक्कत हो जाए लाइफ में। अभी आपको पता है, एक कंटेंट क्रिएटर हैं, नाम नहीं लेंगे, क्या हो रहा है आजकल कंट्रोवर्सी। एक गलती होती है ज़िंदगी में, वो गलती मैं नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं धैर्य से, शांति से चलना चाहता हूँ। अभी भी मेरे में उतना नहीं आया है, मैं टाइम के साथ और बेटर होऊँगा। पर आई वांट टू जस्ट गो ऑन टू अ वेरी सिंपल, राइट, क्लीन पाथ, सो दैट आई जस्ट डोंट स्क्रू अप। बिकॉज़ वो फिर अपने आप सक्सेसफुल लाइफ हो जाती है। आपने बोला ना 10 साल ये कर लोगे तो सेट हो। वही 10 साल कर पाने में ही तो सारा वो मेहनत है। अगर मैं कर पाया तो मुझे भी पता है कि मैं सेट हूँ। पर बस यही अरदास है बाबा जी से, और यही मेहनत है कि बस कर पाएँ। कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि वो गलती बहुत लोगों से होती है। आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, स्पेशली जब आप यंग हो। मेरे लिए थोड़ी और प्रॉब्लम हो जाती है इस चीज़ में। वैसे बाकी सब मेरे लिए ठीक है, मतलब आई एम हैविंग अ नाइस लाइफ, बट दिस इज़ अ बिट ट्रिकी। ये मैं इसलिए मैं बुक्स पढ़ता हूँ, थोड़ी साइकोलॉजी पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, और शांति से देखता हूँ कि क्या हम गलती ना करें। क्योंकि देखो इस उम्र में क्या होता है, जोश बहुत होता है, बहुत जोश आ जाता है। स्पेशली व्हेन यू आर अर्निंग एट अ यंग एज, आपको तो लगा मैं खुदा हूँ, और तभी गलती हो जाती है। सो अगेन आई एम नॉट अफ्रेड टू मेक एनी मिस्टेक, बट मैं बहुत बड़ी गलती नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू स्क्रू अप, एंड दैट्स माय ओनली पर्पस, एंड दैट्स माय ओनली प्लान फॉर नाउ। जैसे चल रहा हूँ वैसे चलते रहूँ, धीरे-धीरे इम्प्रूव करता रहूँ बस। अगले 10 सालों में आपने पूछो तो बहुत विज़न तो बहुत है, बहुत कुछ करना है, और हर एरिया में करना है। पैसे तो कमाने ही है खूब। मतलब आप सोचो इतने कमाने हैं कि बस अलग दुनिया बना लें अपनी, और वो पैसे से मेरे को कुछ करना नहीं है। मेरे कोई गाड़ियों-वाड़ियों के घर, मैं गाड़ी नहीं चलाता, मैं घर पे काम करता हूँ। जाना होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ। कपड़े हैं बहुत अच्छे हैं, पर ऐसा कोई नहीं कि मैं खुद खरीदूँगा जाके, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे ख़ास शौक। खाने-पीने का थोड़ा शौक है, घूमने-वूमने का नॉर्मल। तो मैं उस पैसे से क्या करूँगा अगर आप पूछो, तो मेरे अगेन बाकी शौक़्स को, जो मेरे बाकी शौक है ना, उन पे मैं फंड करूँगा उनको। जैसे आपने बोला ना पॉडकास्टिंग, आपका आप फंड कर पा रहे हो, बिकॉज़ यू मेड एक्स-वाई-ज़ेड अमाउंट, यू आर डूइंग गुड फॉर योरसेल्फ, एंड यू आर एबल टू डू समथिंग दैट यू लव। तो वो रनिंग है, वो चेस है मेरे लिए, वो कंटेंट क्रिएशन है, मैं वो करना चाहता हूँ, और वो पैसे को उधर यूज़ करो। दैट इज़ ऑल आई वांट टू डू। रनिंग में मेरे बहुत एम्बिशंस बढ़ गए हैं सडनली, 1 साल के अंदर, पता नहीं कैसे। पर मैं लोगों को देखता हूँ तो उनकी ज़िंदगी बदली है दौड़ने से, और वो जो फीलिंग आती है उससे वो अलग है। तो मैं वैसे कुछ करना चाहता हूँ, मे बी इंडिया के लिए तो पता नहीं, पर हाँ, एम तो ज़रूर है कि कोई देश के लिए करे, क्योंकि स्पोर्ट्स से मेरे को शुरू से प्यार रहा है। दैट इज़ माय सिंपल कोर्स। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਲਈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਅਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਐਪ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਈਡੀਆ ਪਲੱਸ ਮਨੀ ਪਲੱਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਜੋ ਵੀ ਆ, बिल्कुल। ਪਰਫੈਕਟ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 19-20 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਬਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਆਨਸਰ ਇਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, बिल्कुल। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਥ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਜਨਰਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਊਗੀ ਟੂ ਐਨੀ 18, 19, 20 ਈਅਰ ਓਲਡ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? कभी मैं वीडियो पाई सीख, यू आर योर प्रोजेक्ट, वर्क ऑन योरसेल्फ। काफ़ी लोग पूछते हैं, अगेन आपने बोला क्या करें क्या ना करें, लॉस्ट हैं ये वो। एक तो लोग अपने आप को लॉस्ट बना लेते हैं फॉर नो रीज़न, काफ़ी बार डिप्रेशन में आ गए बच्चे, डिप्रेशन में आ जाते हैं 10-12 साल के। तो वो सर तो पहली बात बकवास है। डोंट बरी योरसेल्फ विद योर प्रॉब्लम, मतलब हैव अ चिल पिल, डोंट टेक लाइफ मोर सीरियसली देन इट इज़। फोकस पूरा होना चाहिए ज़िंदगी में, डिसिप्लिन पूरा होना चाहिए। पर कहने का मतलब इतना भी वो मत करो कि जी हम डिप्रेशन में आ गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सब यंग हो, या अगर कोई बड़ा भी देख रहा है 30 साल 50 साल का भी, तो बहुत स्टोरीज ऐसी हैं जिन्होंने 80 से साल में स्टार्ट किया, वो भी बहुत आगे चले गए। तो पहली बात, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, वर्क ऑन योरसेल्फ। वर्क ऑन योरसेल्फ मतलब अपने दिमाग पे काम करो, हेल्थ पे काम करो, फिटनेस पे। फिर बोलते हैं ना, फाइनेंशियल विन, फिजिकल विन, मेंटल विन। 3 विन्स आपने रोज लेनी है, दैट इज इट, सिंपल रोड मैप टू सक्सेस। पैसे कमाओ, नहीं कमाने आ पा रहे तो पैसे के बारे में कुछ सीख लो, ये तो कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो। पैसे कैसे कमाने हैं, स्टॉक मार्केट क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, सेविंग क्या होती है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, बेसिक्स जो भी है वो तो सीख सकते हो। कमा नहीं पा रहे तो फिजिकल विन, रनिंग करो, जिम जाओ। पैसे नहीं है तो रनिंग करो ना, मैं तो बोलता हूँ बेस्ट है। रनिंग में तो कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ ही नहीं चाहिए। दौड़ो उठ के, दौड़े भी कहाँ पे, अरे रोड पे दौड़ लो, मैं तो रोड पे दौड़ता हूँ, कोई मतलब नहीं। जूते भी नहीं है तो पार्क में दौड़ लो, कुछ नहीं चाहिए। अगेन फिजिकल विन, मेंटल विन, बैठो। अगेन अगर आप बहुत थेरेपी भी नहीं जा सकते, मेडिटेट नहीं कर सकते, आप में सेंटर नहीं जाने का कुछ नहीं, आप बैठ जाओ शांति से, बस ऐसे अकेले। आप अपने साथ टाइम बिताओगे, आपको अपने आप आंसर्स मिलेंगे, अपने आप दिमाग साफ होगा। तो ये 3 विन्स रोज लेनी है, दैट इज इट। बाकी अगेन एज आई ऑलवेज से, फोकस तो इज द न्यू IQ। फोकस के बिना तो कोई चीज़ मैंने किसी को पाते हुए देखी नहीं है। पागलपन ऐसा मैं देखा लोगों में, और वही लोग आगे निकले हैं। मुझे बहुत लोगों ने बोला है, अभी तक बोलते हैं तू तो बिल्कुल ही पागल है, बिल्कुल ही पागल है। मतलब क्या ज़िंदगी जीता है, इसमें है क्या? आप आगे बढ़ भी रहा है फिर भी एंजॉय नहीं कर रहा, तो आगे बढ़ने का मतलब क्या? पर मेरे लिए आगे बढ़ने का मतलब यही, क्योंकि अगर मैं वो एंजॉय करने लग गया, मैं आगे से और आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मेरे लिए एक पर्पस है, एक मिशन है, और जिसमें मैं सरेंडर कर चुका हूँ। यू सरेंडर योरसेल्फ एंड यू नेवर लुक बैक। तो जो भी देख रहा है, कोई जवान है तो स्पेशली उनके लिए फोकस। ये कुछ साल होते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, बहुत कुछ आएगा, मतलब रोज ही चीज़ें आएंगी, और लोग आपको बोलेंगे ये खाने चल, ये पीने चल, इसके साथ घूम, ये लड़की ये लड़का, ये बहुत कुछ होगा। यू नीड टू समहाउ फोकस एंड पास दीज ईयर्स। ये हाथ में आ गया ना मुट्ठी में, मैं बता रहा हूँ, ऐसे जैसे कि फीलिंग नहीं है, बिकॉज़ नाउ आई फील सो मच मोर कॉन्फिडेंट। ऐसा नहीं है क्योंकि एरोगेंस है कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ, पर ये है कि चलो अपने लिए ठीक हूँ। तो जो मैं 5 साल पहले था, जो आज हूँ, उसमें बहुत अच्छा लगता है अपने आप में देख के, लुक बैक करके। चाहे मैंने बहुत एन्जॉयमेंट्स मिस करी हैं, तो सारी मिस करी हैं। सच बताऊँ वीर जी, मैं आज तक कोई पार्टी में नहीं गया, आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, आज तक कोई नशा नहीं। इनफैक्ट आई डोंट ईट मीट सिंस 3-4 इयर्स। मतलब ऑफ कोर्स पीते-पीते तो थे नहीं, पर चिकन खाना भी छोड़ दिया। सो आई डोंट ईट मीट, आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक ऑफ कोर्स, आई डोंट पार्टी। तो भी सारी आपकी चीज़ें एक्साइटमेंट वाली, वो सब मैं नहीं करता। तो मेरी रूटीन बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल एन्जॉय करता हूँ, पर नॉर्मली अपने घर वालों के साथ अपना नॉर्मल हँस खेल लिया, दैट इज़ ऑल। इसमें भी बहुत एन्जॉयमेंट है, इफ यू अंडरस्टैंड दिस। इसमें एक्चुअली ज़्यादा एन्जॉयमेंट है, अगर आप इसको समझ जाओ तो। तो ट्राई टू फोकस ऑन द लिटिल जॉयज़ इन लाइफ, बिकॉज़ दैट विल हेल्प यू टू एक्चुअली स्टिक ऑन टू इट। ये एन्जॉयमेंट जो है ना, सस्टेनेबल नहीं है। लोगों को लगता है हम पार्टी कर रहे हैं, मज़ा तो आता है। जब मज़ा मैं नहीं कर रहा, मज़ा नहीं आता होगा, मज़ा बहुत आता होगा, पर आप रोज़ कर ही नहीं सकते, सस्टेनेबल ही नहीं है ना। तो ये बच्चे सबसे ज़्यादा गलती मेरे को लग रहा है यही कर रहे हैं आजकल, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, दैट इज़ सीरियस। बहुत लोग इसको रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, पर मैं अपने लोगों को देख रहा हूँ, जो मेरे खुद के स्कूल के दोस्त थे, मैं उनको देख रहा हूँ, वो काफ़ी लोगों ने काफ़ी टाइम ये किया, और मैं अपने साथ ग्रोथ कर रहा था, और वो यहाँ से ही कर रहे थे। मैं देखता आ रहा हूँ उनकी जर्नी को भी और अपनी जर्नी को भी। एक टाइम के बाद वो थक गए,
मानो 5 साल मेरी जर्नी घुमाई तो 3 साल तक उन्होंने किया और तीसरे साल पे थक गए। आई एम टेलिंग यू वो थक गए ऐसा और उनको और कुछ करने का मन नहीं कर रहा और वो वापस उस पे भी लुक बैक नहीं कर सकते और कुछ और भी नहीं कर सकते। अब वो ऐसी जगह फँस गए हैं, वो एस्केप ढूँढते हैं वहाँ जाके, पर वहाँ पे भी एन्जॉय कर नहीं पाते। दैट एन्जॉयमेंट हैज़ बिकम सो वीक, इट इज़ सच अ चीप प्लेज़र कि उनको मज़ा भी नहीं आता। ना मज़ा आ रहा है, ना ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, फँस गए आप ज़िंदगी भर के लिए और वो टाइम निकल गया। तो फ़ोकस, अवॉइड दीज़ डिस्ट्रैक्शंस, अवॉइड दीज़ चीप प्लेज़र्स, एन्जॉय करो लाइफ़ को पर लिटिल जॉय से करो एंड काम करो यार पागलों की तरह। मतलब काम करने में सोचो मत, रुको मत, बस पागल हो जाओ। जुनून ऐसा होना चाहिए, आग उबलनी चाहिए अंदर से, वरना जवानी किस बात की? गाड़ियाँ चला के जोश दिखाने से कुछ नहीं होता है, लड़ाइयाँ करके जोश दिखाने से कुछ नहीं होता। मैं तो कहता हूँ धंधा करो, तब देखते हैं तुम्हारा जोश कितना है। दैट इज़ ऑल आई वुड लाइक टू से। मतलब ये समझ लिया तो आई थिंक सब समझ लिया बंदे ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ 19 ਈਅਰ ਓਲਡ ਬੈਠਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਆਸੋ ਭਾਜੀ ਫॉर हैविंग मी। ਤੇ ਵੀਰ ਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਵਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਹਨਾ, KS ਸੋਢੀ ਤੇ KS ਸੋਢੀ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੀਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू सो मच भाई फॉर हैविंग मी। थैंक यू।